सक्सेसफुल लाइफ, 6 फिगर सैलरी, फिर क्या वजह थी जो आप कंप्लीटली वहाँ से ऑफ हो गए, वहाँ से छोड़ दिए, एक यू टर्न ले लिया अपनी लाइफ में? The thing is, ऑनेस्ट फीलिंग बताइए, जस्ट टेक मी बैक टू द डे यू रिजाइन्ड, टू द डे हाउ इट वाज ऑल व्हेन यू वर एक सक्सेसफुल वर्जन था, फिर सडन आप सब कुछ चेंज हो गया। कुछ गिल्ट था अंदर छोड़ने का, या व्हाट वेयर यू गोइंग थ्रू? वाज दीन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट? हाउ वाज इट? जस्ट टेक अस थ्रू योर चाइल्डहुड। so I have been born and brought up in Hyderabad. Yeah. Walaikum assalam, doc. हाउ आर यू? Alhamdulillah. रोहिना, अब सब जने स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, अपन जरा एंडिंग से स्टार्ट करेंगे। आप एक कॉर्पोरेट लैडर चढ़ गए थे, एक सक्सेसफुल लाइफ, 6 फिगर सैलरी, फिर क्या वजह थी जो आप कंप्लीटली वहाँ से ऑफ हो गए, वहाँ से छोड़ दिए, एक यू टर्न ले लिया अपनी लाइफ में? The thing is, on paper it seemed perfect. Everything was going in order. Sab cheez perfect thi. The job was high paying. I was well settled. I'd reached, where I wanted to reach. I achieved what I wanted to achieve. But everything changed the minute I conceived, became pregnant, and had a daughter. So basically, motherhood is what completely, bolte na, ek break laga ke U-turn. That is what happened with me. Because, I started questioning what I'm leaving behind for her. I started questioning what she's going to look up to. And मेरे लिए क्या हो गया था कि what I'm achieving took a back seat, and what am I going to leave behind for her? That became important. एक आप आपकी ऑनेस्ट फीलिंग बताइए, जस्ट टेक मी बैक टू द डे यू रिजाइन्ड, टू द डे हाउ इट वाज ऑल व्हेन यू वर एक सक्सेसफुल वर्जन था, फिर सडन आप सब कुछ चेंज हो गया। कुछ गिल्ट था अंदर छोड़ने का, या व्हाट वेयर यू गोइंग थ्रू? माइंड में क्या चल रहा था आपके? I think we have been conditioned in a way that, these days you see Instagram and you see any working woman. So this image of a working woman has been glorified so much Yes. that, the homemaker has taken a backseat. Okay. And aisa dikh raha that, if you're a homemaker, you're not achieving enough. So working women have that, we can't say superiority complex, but ek hota hai that, we have an edge over the, Right. homemaker. So when a question comes कि भाई you want to leave all that and get to this, so you start thinking कि मैं नीचे होने वाली हूँ, I'm stepping down the ladder. Okay. But for me it was the other way around. I felt that, whatever I was doing there, although, I did learn a lot from every role that I've worked in, I felt that, this is something more meaningful. You are actually shaping a life. You're serving her, you're shaping her life, and her entire future depends on this. So it's much, much, much more important than what you were doing earlier. So I never felt that मैं कदम नीचे उतर रही हूँ, I'm stepping down the ladder or something like that. I always had that feeling that I'm being blessed with motherhood, and it's an honor to have a daughter, and I took it like that. So मेरे को ऐसा दिखा नहीं that I'm losing out on something. But to be honest with you, it was a very big decision because leaving a very comfortable, very high paying job, especially when the entire household is dependent on me, was very difficult for me because my daughter was dependent on me, and I had absolutely no plan ke bhai main next karungi kya, and where is the income going to come from, what's going to happen. But one thing was that in every role that I worked in, there was a bit of uneasiness. Although I reached the max, जैसा कि जितना आप चढ़ सकते हो उतना चढ़ लिए समझिए आप. But even then, I wasn't satisfied enough. I was like, is this what I'm meant to do? मतलब, is this it? वैसी वाली feeling आती थी. That's another reason why I jumped, careers. I wanted to see what's the right fit for me. I wanted to see why am I not satisfied enough? मतलब ऐसा क्या है? What is missing? So at that point of time, I didn't understand कि भाई what is the urge for. But today, now looking back at all that time, I can totally understand that Allah has literally connected the dots, guided me in such a way that today I can look back and say that every role has contributed to where I am now. माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, राइट? इट इज ट्रूली के अपन को बाद में समझ में आता कि अल्लाह ताला ये प्लान कर रहे थे, अल्लाह ताला डिजाइन कर रहे थे अपनी लाइफ, एंड वी कभी शायद पास्ट में जाके नहीं सोच सकते कि हम ऐसा भी हो जाएंगे क्या। माशाल्लाह। विल गो बैक टू योर चाइल्डहुड। आपका चाइल्डहुड कैसा था? आपके पेरेंट्स आपकी परवरिश कैसा करें? वाज दीन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट? हाउ वाज इट? जस्ट टेक अस थ्रू योर चाइल्डहुड। So I have been born and brought up in Hyderabad, and my family has deep roots in Hyderabad. I think मेरे childhood में आप बोल सकते हैं we were brought up in a very secular way.
because the time that we were kids in, that generation was completely different. And वहाँ पर कैसा था कि we had mixed faiths in the schools as well, Right. and we had mixed family friends होते थे who were of different faiths. So ऐसा नहीं था that Islam was not people do practice, they were practicing at that time as well, but इतना like you couldn't identify a Muslim by seeing. Okay. जैसे आपके डैड होते थे, उनके फ्रेंड्स होते थे, you couldn't see and say कि भाई मुस्लिम ही होंगे, because now क्या हो गया that awareness इतनी आ गई that women have started practicing कि भाई हिजाब भी even in occasions, parties and all, they are wearing it. पहले ऐसा नहीं था, नहीं था, इतनी वो नहीं बिल्कुल। थी, and I think even the adults in the family, I think the women in the family इतना नहीं करते थे. That rather than this generation, जो Right. मैं आज देख रही हूँ, people boldly wear it even in a wedding, boldly wear it outside also. पहले क्या था, एक there was a हिचकिचाहट बोलते हैं आप, जी वो हाँ। होती थी कि लोग समझते थे कि भाई हम जज हो जाएंगे, why wear it in a party, क्यों, जरूरत नहीं है, Right, it right. used to be like that. So इतना कॉमन नहीं था, so we had people of mixed faiths पूरे आपस में बड़े हुए, साथ में हंसते थे, खेलते थे, एवरीथिंग वी सेलिब्रेटेड, उनके फेस्टिवल्स हम मनाते थे, हमारे फेस्टिवल्स वो मनाते थे. सो ऐसा नहीं था कि कुछ इस्लामिक आइडेंटिटी, कुछ Okay. इस्लामिक कनेक्शन, एक सेक्युलर तरीके से बड़े हुए हम लोग इन माय फैमिली. एंड मेरे मदर के भी बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी उनके फ्रेंड्स है, अनबिलीवेबल, बट वन इज अ ब्राह्मण एंड वन इज अ पारसी. Okay. तो मेरे को क्या था, मेरे लिटरली लाइक खालाओं के जैसे, तो तीनों फेथ्स, तो मैं उन लोग के साथ उनके फेस्टिवल्स मनाए, जैसे दिवाली है, होली है, एंड पारसी उनका नवरोज होता. तो ऐसा था कि इतना सेक्युलर तरीके से, तो आई डिड नॉट हैव दैट सेंस ऑफ आइडेंटिटी, Okay. स्पेशली कि एक मुस्लिम रहता कैसा, व्हाट इज सो स्पेशल. जैसा ईद आजकल क्या है, मदर्स गो आउट ऑफ द वे कि भाई स्पेशल कराएंगे, बच्चे को कनेक्ट कराएंगे, सो दैट Right. उनको समझ में आए कि दिस इज योर फेस्टिवल, इट्स आल्सो स्पेशल, जस्ट एज स्पेशल जैसा क्रिसमस है, यू Right. नो सो दैट इज व्हाट मदर्स आर डूइंग नाउ. बट वो जमाने में इतना था नहीं है, नहीं ईद था। बोलते हम डेकोरेट भी कहाँ करते थे, शीर Right. खुरमा बन गया, दैट वाज इट, सो नए कपड़े होते थे, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट कि Right. भाई इस, अरे नए कपड़े रहेंगे, अरे शीर खुरमा बनेगा, नॉट आइडेंटिटी वाइज कनेक्शन नहीं होता था कि अपनी ईद है, इट्स लाइक 30 days रोजा रहने के बाद ईद आई, वैसा उतना अहमियत नहीं थी, Right. एंड वो जमाने में. तो दैट इज व्हाट मेरे, आई थिंक पूरा जर्नी जैसे मेरे को बड़े क्लियर है, दैट इज हाउ आई वाज रेज्ड. बट एज आई टोल्ड यू, जब मदर बने, जब दीज क्वेश्चंस केम इनटू लाइट कि भाई हम कैसा चाहेंगे कि हमारी बच्ची मेरे को देख के ही एग्जाम्पल लेंगी. सो मैं जैसा चाह रही हूँ कि उन्हें रहेंगी आफ्टर 10 years, दैट इज व्हाट आई वांट टू बी टुडे. क्योंकि मैं आज जैसी हूँ, मैं आज जैसी मुसलमान हूँ, मैं जैसा इस्लाम घर में प्रैक्टिस कर रही हूँ, या मैं जैसा अल्लाह की अहमियत उसको बता रही हूँ कि मेरे लिए जितनी है, उन्हें वो सेम रेप्लिकेट ही करेंगी. बिल्कुल। शी सडनली उसको लव ऑफ अल्लाह मियां नहीं आने वाला है. 7 years नमाज शुरू करो बेटे, दैट्स नॉट गोइंग टू नहीं, नहीं हैपन करेंगे, सडनली. बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें मेरे को देख के ही सीखने वाले हैं कि भाई ओके मम्मा, टर्न अल्लाह मियाँ के पास हर चीज़ के लिए टर्न होते हैं, जो भी उनको दुआ करना है हम अल्लाह मियाँ से ही मांगते हैं. सो दिस इज, मैं तो यही देख रही हूँ, तो मतलब लिहाजा मेरे को भी जब कुछ चाहिए होगा, 7 years हो जाएंगे, नमाज के जरिए मैं अल्लाह से बात करूंगी, एंड दैट इज हाउ मैं अल्लाह से मांगूंगी वॉट एवर इट इज. एंड माशाल्लाह। एक चीज व्हाट आई फील विच वी नीड टू इनकलकेट, और बच्चों को भी ये चीज की आई थिंक अहमियत डालना चाहिए, दैट अल्लाह ताला 70 अम्मा की मोहब्बत रखते, राइट. तो मेरी बिल्कुल। क्या है उसके सामने, आप सोचिए खाली कि भाई एक हूँ मैं, वो 70. तो वो बच्चे को जब समझ में आ जाएगा दैट अल्लाह ताला मेरे को इतना चाहते कि नोबडी ऑन एल्स में। अर्थ के मेरे को इतना कोई चाह ही नहीं सकता, बिल्कुल। तो क्या उन्होंने किसी और को टर्न होएगा वो चीज़ के लिए, इवन फॉर फाइनेंसेस, फॉर एनी सपोर्ट, फॉर एनी हेल्प. जब उनको मालूम है कि अल्लाह ताला 70 माओं की मोहब्बत रखते, तो वो वहीं नेचुरली इंक्लाइंड रहेंगे कि भाई मैं इधर टर्न हूँ. सो माय जॉब एंड द आइडिया बिहाइंड माय इस्लामिक क्लब ये है कि बच्चे वो कनेक्शन बना ले, यू बिल्कुल। नो नमाज आएंगी, कुरान आएंगी, इस्लामिक स्टडीज आएंगे, एंड आजकल के मदर्स आर वेरी केपेबल कि उनको मालूम है कि क्या एज में कुरान शरीफ स्टार्ट करना है, क्या एज में नमाज स्टार्ट करना है, सो वो हिसाब से वो लोग प्रिपेयर भी कर रहे. दिस इज नॉट समथिंग आई कैन टीच, कुछ राइट। नया नहीं है, पीपल ऑलरेडी नो दैट. माय जॉब इज कि भाई 3 से 6 साल जो फितरा की फॉर्मिंग ईयर्स है, जब आपके बच्चे की फितरत बनने वाली है, वो टाइम पे अगर उनका कनेक्शन मैं अल्लाह ताला से कर सकी, बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह, कि अगर ये हो गया, तो जस्ट इमेजिन कि जब वो बच्चा नमाज पढ़ना शुरू करेगा या कुरान शरीफ शुरू करेगा, तो कितना उससे मोहब्बत रहेंगी उसको अल्लाह ताला से, कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। तरीके से करेगा, दैट वो है एम अपने के आप से बच्चे में इंटरेस्ट इंटरेस्ट आएगा एंड आएगा। मोहब्बत रहेंगी, एक
फियर नहीं रहेगा, एक डर नहीं हाँ, रहेगा कि भाई तुम जैसा पढ़ो नहीं तो जा रहे हो आप दोजख में सीधा, वो नहीं रहेगा। आई आई विश कि मेरे को कभी ये बोलना ना पड़े कि बेटे आप नहीं पढ़े तो आप दोजख जाएंगे। आई बिल्कुल, होप कि ये कभी ना हो। बिल्कुल, सो वो मोहब्बत रहेंगी तो ये नहीं होगा, बिल्कुल। सो यही है ऑब्जेक्शन, मेन ऑब्जेक्ट के बच्चे को वो मोहब्बत बन जाए अल्लाह ताला से, उसको समझ इंशाल्लाह, में आ जाए कि अल्लाह ताला मेरे को इतना चाहने वाले हैं कि कोई कभी मेरे को इतना चाह ही नहीं सकता, बिल्कुल, नॉट इवन माई ओन मदर। मेरी माँ भी मेरे को इतना नहीं चाह सकती जितना कि मेरे को अल्लाह ताला चाहेंगे। सो ऑटोमेटिक उसके पूरे कनेक्शंस अल्लाह ताला से रहेंगे, उनको ये कुछ करना ही दिल ही नहीं बोलेगा जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ बर्थडे, लाइक स्कूल जाएंगे दूसरों के बर्थडे देखते, वापस आके मेरे को भी बोलते कि मेरी बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट होती, मेरे को केक क्यों नहीं कट करते। ओके, एक ही चीज का जवाब यही रहता है, एक ही जवाब, दैट अल्लाह ताला डजंट लाइक इट। आपको करना दिल बोलेगा। जब बच्चे को इतनी मोहब्बत है, उसको मालूम है दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अल्लाह ताला एंड ही लव्स मी सो मच, तो उन्हें कुछ करना ही नहीं चाहेगा दैट अल्लाह ताला डजंट लाइक। लाइक खुद से ही एब्सोल्युटली, बोलते हैं कि अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, नो आई डोंट वांट इट, इट्स फाइन, अपन ईद में काट लेंगे ये राइट। वो और बच्चे के लिए। उतना डीप डालना एक बच्चे के दिल में आई थिंक टफ है। इट्स एक्चुअली नॉट डीप, कम टू थिंक ऑफ इट, बिकॉज आई थिंक अपन एज, जैसे अपन मुसलमान है, अपना मेन गोल यही रहना चाहिए दैट अल्लाह ताला शुड बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग यू डू। ओके, तो जब आपको वो मोहब्बत आ जाएंगी अल्लाह ताला से, तो आपको समझ में भी आ जाएगा दैट हर चीज वहीं आके रुकने वाली है, उनसे ही रिस्क आने वाला है, उनसे ही एब्सोल्युटली, आपकी किस्मत खुलने वाली है, उनसे ही आपके अब जैसा थोड़े बहनें हैं जो अच्छे रिश्ते के लिए वेट कर रहे हैं, वो उनसे ही होने वाला है। राइट, डोंट टर्न हियर एंड देयर, डोंट टर्न टू एनीबॉडी एल्स। आप जानेमाज़ पे जाओ, आप मांगो, आपको जो मांगना है, किसी के सामने कभी ऐसा आना भी नहीं चाहिए सिचुएशन के अपन झुके, क्योंकि कहाँ से आएगा, दैट इज गोइंग टू कम थ्रू हिम ओनली, अल्लाह ताला राइट, से ही आएगा, वही वो इंसान के दिल में भी डालेंगे कि भाई बिल्कुल, आपकी कुछ है, मदद करो या आपका कुछ जरिया बनिए, वट एवर। सो अब जब सी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बचपन से ही है, देन देयर इज नो चांस ऑफ यू टर्निंग एनीवेयर एल्स, कि भाई मेरे को नमाज पढ़ना है, मेरे को अल्लाह ताला से मांगना है, मेरे को आने वाली है वो चीज, बी इट अ करियर अपॉर्चुनिटी, be it a marriage proposal, be it a child, be it anything. So this, I think अपन as adults realize it too late. After राइट, we tried everywhere else, राइट। हर तरीके से जब अपन रुस्वा हो जाते, जब जब अपन अल्लाह के पास जानेमाज़ पे जाएँगे। जाके बैठते कि अल्लाह ताला हम हर चीज़ ट्राई कर लिए, ये नहीं वर्कआउट हो रहा, लिहाज़ा बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम रादर सरेंडर, देन फर्स्ट स्टेप लेना एग्ज़ैक्टली, चाहिए। तो आप सरेंडर शुरू में करिए। आप बिल्कुल, पहले रुस्वा मत होइए ज़माने से, बिल्कुल, आप पहले सरेंडर करिए एंड देन यू सी कि अल्लाह आपको कैसी इज़्ज़त देने वाले हैं, अल्लाह आपका कैसा रिज़्क खोलने वाले हैं, सो दीज़ आर थिंग्स जो मैं बहुत लेट समझी, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई वांट माय डॉटर टू हैव इट ईज़ी, उसके लिए रास्ता आसान होना चाहिए, उसके लिए ये चीज़ नॉर्मल होना चाहिए, ये चीज़ आम होना चाहिए। इवन जैसा मैं हिजाब, तो हिजाब जर्नी आई एक्चुअली एक बार मैं स्टार्ट करी थी 2015 में। इंटेंशन वाज़ कि भई अब हिजाब करेंगे। आई वाज़ एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड अर्ली इन माय चाइल्डहुड, यू कैन से टीन्स में, जब 2006 में मैं हज को जाने का मौका मिला था मेरे को, मेरे माशाल्लाह, मम्मी-पापा दोनों के साथ। तो ये बहुत बड़ी नेमत थी मेरे लिए वो टाइम पे, बट उसकी अहमियत आज समझ में आती कि कितनी बड़ी चीज़ थी वो। माशाल्लाह। एंड वो टाइम पे उतनी अहमियत थी नहीं, उतनी उम्रा नॉलेज करे नहीं आपने थी। हज? हज। हज माशाल्लाह। एंड लकीली वो साल हज अकबर भी लगा था हमारे पास, वीज़ा लग गया था, तब पता चला था कि हज अकबर रहने वाली है। माशाल्लाह, सो वो टाइम पे इतनी ऑफ कोर्स वी न्यू कि हम कोई मुकद्दस जगह जा रहे हैं, एंड इतनी बड़ी चीज़ हो राइट, रही, वी आर ब्लेस्ड, वी आर चोज़न, बट उसकी अहमियत, लाइक एक-एक एक्शन की अहमियत। रिसेंटली आई हैड अ हज कैंप फॉर किड्स, तो मैं जब उनको, आई वाज़ डूइंग द रिसर्च बिहाइंड एवरी एक्शन कि क्यों होता है, कैसा होता है, एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि इतनी डेप्थ है, ये चीज़ में। तो वो जब वो टाइम पे समझ में नहीं आया था, आज आई अंडरस्टैंड। सो मेरा इंटेंशन भी यही है, बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस आई हैड, मैं जब वहाँ गई थी, वो एक्शंस करी डेफिनिटली, बट मेरे को रनिंग थ्रू सफ़ा एंड मरवा, I couldn't imagine कि बीबी हजर कैसा करे होंगे, what must she have been through. Again, after being a mother, you realize these राइट, things कि सो it's ट्रू। so, you can connect with it. तो मैं चाह रही थी कि जो बच्चे रहेंगे जिसके माँ बाबा हज पे जा रहे, there were some kids जिसके मॉम हज पे गए हुए हैं, थोड़े किड्स के डैड हज पे गए हुए थे, so I wanted them to come and see कि भाई ऐसा है, ये एक एक्शन है, ये इसका नाम है, ये इसलिए कर रहे हैं, उनको मैं भाग के बताई लिटरली बिटवीन सफा एंड मरवा के, हम पानी ढूंढ रही हूँ मैं, तो उनको भी बिल्कुल, समझ में आया बिल्कुल, कि हाँ, मेरे मम्मा ऐसे ही हेल्प्स मी इन एवरीथिंग, सो क्या डेस्परेशन था होगा, इवन अ माशाल्लाह। चाइल्ड कैन कनेक्ट विद समथिंग सो सिंपल। सो इंटेंशन यही है दैट बच्चे दीन से मोहब्बत करें, एक तो है कि दीन से डरे नहीं, एंड ऐसा है कि आई थिंक ये जनरेशन ऑफ अपने मदर्स। पास ये बहुत ज़्यादा था ना कि जब अपने को जब भी दीन की तालीम मिली बचपने से, अपने जनरेशन की बात कर रही हूँ मैं, वो डरा के मिली। जैसा होता है ना एक रिवॉर्ड
रहता, एक रहता हाँ, the reward gave, पनिशमेंट। yes, yes. I think it हाँ, was more of reward and punishment. पनिशमेंट का ज़्यादा Yeah. था, दोज़ख का डर, आग का Yeah. डर और शैतान का डर, I मोर देन I think कनेक्टिंग अस टू अपने पास ऑप्शंस भी इतने नहीं थे when we were kids because अपने पास क्या होता था especially in my family and the relative circle and whatever it is कि 4 years का हुआ बच्चा बिस्मिल्लाह पार्टी हो गई एंड राइट, अलिफ बे अता शुरू कर दिए एंड मौलवी साहब आ रहे घर पे एंड उसको कुरान सिखा दे रहे। कुरान का मतलब ये है कि अलिफ बा ता सा एज अ लैंग्वेज जैसे अल्फाबेट सिखा दिया। इफ माय बच्चा एक लाइन पढ़ ले रहा तो वाओ मेरा बच्चा कुरान सीख लिया, दैट्स इट, माय हैंड्स आर वॉश्ड। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मैं जब 14 या 15 की थी, जब मैं नमाज ठहर के पढ़ रही हूँ थी, मेरे को मालूम भी नहीं था तो मैं क्या बोल रही हूँ, बट मेरे को मालूम था कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ। तो मैं बहुत राइट, राइट। पायस हूँ, लाइक मैं तो पढ़ रही हूँ, फजर पढ़ रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, स्कूल जाने से पहले पढ़ रही हूँ, तो मतलब मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूँ, एंड क्या पढ़ रही नहीं मालूम, उसका मतलब क्या है नहीं मालूम। ये एक्चुअली बहुत फेमस भी होता है, राइट? इंडिया और पाकिस्तान में या अक्सर हमको कुरान एज़ अ लैंग्वेज नहीं नहीं सिखाते, सिखाते, बस अरबिक एज़ अ लैंग्वेज नहीं सिखाते, बस कुरान पढ़ने के अल्फाबेट्स, लिए, या कुरान जस्ट टू पढ़ने रीड। के लिए उसका या वोकलाइज़ेशन, सिर्फ़ उसका प्रोनंसिएशन सिखा या देंगे अपने को, लेकिन उसके मायने हमको कभी भी नहीं मालूम नहीं सिखाते। रहते। So the main aim was कि I introduced Arabic. I had no intentions earlier, but ये चीज़ जब मैं देखी, जैसे मेरी बच्ची भी 4 हुई and I considered कि उसके लिए Arabic start करेंगे, तो फिर मेरे को I went back to my journey and did राइट, I कुछ अहमियत थी वो मौलवी साहब के वो पढ़ने की, क्योंकि मैं सीखी क्या उससे। आज भी मेरे को पढ़ने आता, बट आज भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। बिल्कुल, तो अहमियत नहीं है, वो कनेक्शन ही नहीं है। सो मेरे को ये था दैट जब मैं अरबिक एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करूंगी बरका टेल्स में, द चाइल्ड नोज व्हाट ही इज सेइंग। So as Arabic as a whole, he understands that as a language, not just to read and write. तो उसको जब वो समझ में आएगा, जब उन्हें सूरह फातिहा नमाज में बोलेंगे, उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल, वो चीज़ जब समझ में आना शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन आपका नमाज से आपको मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। बिकॉज़ आपको मालूम है कि दिन में 5 टाइम अल्लाह ने आपको चांस दे रहे हैं कि कम टू मी एंड टेल मी। एंड मेरे को तो ऐसा दिखता है कि रिलीफ, द जो ज़ोहर की जो नमाज़ रहती है, मेरे को दिखता है वो रश एंड हसल-बसल, बच्चों को स्कूल से ला रही ये वो, उसमें आपको 10 मिनट मिल रहे हैं कि जस्ट स्टैंड, गिव एवरीथिंग टू हिम एंड जस्ट टॉक। सो वो दैट इज़ कीपिंग यू माशाल्लाह, ग्राउंडेड। आई थिंक अपना इस्लाम डिज़ाइन्ड ही ऐसे तरीके से है दैट आपको हर मिनट पे यू गेट दोज़ माइंडफुलनेस। आजकल चल रहा है, वायरल है, राइट? हाँ, माइंडफुलनेस मिनट्स। माइंडफुलनेस, बीच में खाने से पहले माइंडफुलनेस रखिए, इंटेंशन रखिए, सेंटर योरसेल्फ टू द प्लेट। हम तो शुरू से ही करते हैं, राइट? वी से बिस्मिल्लाह एंड वी स्टार्ट। राइट, दैट इज़ दैट इज़ द माइंडफुलनेस ब्यूटी एंड ऑफ इस्लाम। आफ्टर ईटिंग वी से अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रैटिट्यूड। So I think there are a lot of concepts which I think other religions and these माइंड कोचेस हैव पिक्ड अप फ्रॉम इस्लाम, जो आई थिंक अगर बच्चों को हम अभी से इंट्रोड्यूस करें ये चीज़ों से, तो आगे जाके इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। दे विल नॉट नीड अ माइंड कोच एंड ऑल राइट, दीस थिंग्स, बिकॉज़ उनको पता है कि दीस आर थिंग्स 1400 इयर्स अगो हमारे इस्लाम में ऑलरेडी है। तो दैट्स द इंटेंशन। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। इंशाल्लाह। यू सेड कि मेरी बेटी मेरे को जैसा देखेंगी वैसा सीखेंगी। मतलब बच्चे जो है देख के सीखते रादर दैन जो हम बोल रहे हैं। बच्चे उठो, नमाज़ पढ़ो या ये काम करो, वो काम करो। बच्चे सुन के नहीं सीखते, बच्चे देख के सीख रहे कि मेरी मम्मी क्या कर रही, मेरी मम्मी क्यों पका रहे, मेरे मम्मी क्या कामों में इन्वॉल्व्ड है या उन्हें क्यों कर रहे। तो हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन? हाउ डिड यू फिगर इट आउट? So basically it was not figuring out, it was more of learning. तो व्हेन आई थिंक मेरी बच्ची जब हुई थी, मैं आई वाज़ फीडिंग हर टिल शी वाज़ 3, तो मेरे को मैटरनिटी ब्रेक लेना पड़ा था। ओके, लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मैटरनिटी ब्रेक ली थी एंड उसकी डिलीवरी के बाद बिकॉज़ आई वाज़ फीडिंग हर, मैं आई थिंक टिल शी वाज़ 8 मंथ्स मैं वापस जॉइन बैक नहीं करी थी। ओके, सो आफ्टर जॉइनिंग बैक आई रियलाइज़ कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे हाथ में आ गई एंड हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल इट। तो मैं मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग ली ऑनलाइन। ओके, सो एट दैट टाइम एज़ एन असिस्टेंट टू 3 to 6 कोर्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बच्चा सीखता कैसा, बच्चा ओके, हाउ ग्रो कैसा होता, वो मतलब चीज़ें उसके ज़हन में आते कैसा, हाउ डज़ ही अंडरस्टैंड। तो उसके लिए आई टुक दैट ट्रेनिंग, क्योंकि मैं घर बैठी हुई थी एंड आई कैन नॉट बी एट द हाउस विदाउट डूइंग एनीथिंग। आई वो डिड एक हाँ, पहले से इंग्रेन हो चुकी है बिकॉज़ ऑफ आई थिंक 14 इयर्स ऑफ वर्किंग। बिल्कुल, So I thought कि चलो लेट्स सी कैसा वर्कआउट होएगा। So in that Montessori course I have learned that a child has an absorbent mind. Absorbent mind का मतलब ही ये है कि वो सबकॉन्शियसली सीखने वाला है। आप उसको बोल के 3 to 6 तक सिखा ही नहीं सकते। You cannot teach him anything. आप जैसे बोलेंगे उन्हें सुनेंगे, बट दैट समझने की सलाहियत अनवर अभी नहीं है उसमें। तो उन्होंने ज़्यादा 1 से 7 आप इंस्ट्रक्शन देंगे उन्हें बेशक फॉलो करेंगे। इवन आई थिंक आजकल तो 5-6 में भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते बच्चे। बट सबकॉन्शियसली जो देख के पिकअप कर रहे,
the mind is already working on its own, and that is also not consciously happening कि उन लोग Right. ध्यान से देख के नहीं सीख रहे, वो ऐसा भी हो रहा, they're picking it up. एंड अगर उसमें वो बच्चा ध्यान भी देना शुरू करा तो एक मिनट में ही कैन लर्न हाउ टू डू थिंग्स. So that is what I understood, that subconsciously child is picking up. So initially I think जो मैं मेरी बच्ची when she turned 2 she loves stories. तो Okay. उनको I read a lot, I'm a bookworm. तो उनको भी क्या है, रात में आई यूज्ड टू रीड फॉर हर, ऑल्दो मेरे को समझ में नहीं आता था कि उन्हें समझ रहे या नहीं समझ रहे, बट वो मेरी आवाज सुन के वो सो जाती थी ना, तो मेरे को था कि हाँ चलो सुन के स्लीपिंग, सो लेट मी जस्ट रीड. तो मैं उनके लिए पढ़ती थी. तो इतना था कि कोई भी कॉन्सेप्ट उसको समझाना है तो मैं बोल बोल के बोलते नहीं दीवार पे सर मार रहे हैं, उससे अच्छा मैं सोचती थी कि एज अ स्टोरी मैं उसको बोलूँ तो Okay. शी विल गेट इट. तो रमज़ान रोज़ा क्यों रहते? पूछे उन्होंने मेरे से एक बार, तो आई मेड अ स्टोरी बुक, जिसमें मैं मम्मी का कैरेक्टर बनाई और उनका बनाई, वन ऑफ अ फेवरेट फ्रॉक वो कैरेक्टर को पिनाई, मॉम को पिनाई. एंड जब मैं डिज़ाइन कर रही थी मेरे को ये था दैट आई विल मेक द कैरेक्टर्स वेयर हिजाब. Okay. ओके, सो द पर्पस वाज़ कि वो देख-देख के उनको एक आइडेंटिटी बिल्ड होना शुरू होती माइंड में दैट दिस इज़ समथिंग नॉर्मल. Okay. कैरेक्टर्स वेयर हिजाब, द चाइल्ड वेयर्स, द नानी वेयर्स, सो दैट इज़ नॉर्मल हो जाएगा उनके वास्ते. वो इंटेंशन था. So that is how I started writing books as well. कि बच्चा देखेगा, बच्चा सीखेगा, whatever I wanted to teach her as a story form में उनको बताती थी. वहाँ से it progressed to activity binders because मैं बच्ची के लिए जब लेना चाह रही थी Amazon पे ढूँढने से I found all these shapes के, letters के, alphabets के वही मिल रहे थे activity हाँ. binders. Nothing Islamic. तो मेरे को ये था that I will teach her shapes, I will teach her matching, but मैं Islamic elements यूज़ करके रखूँगी. Okay. So that वो बच्चा जब absorb कर रहा, subconsciously उसको मस्जिद के figures, मस्जिद के forms, these kind of just minars and these things become normal for her. माशाल्लाह. So from Islamic architecture, I picked up those things and उससे matching and dates खजूरों से and अपने सुन्नत के जो foods है, सुन्ना fruits, सुन्ना things, उससे number counting. तो I wanted it to do it like that for her. So I made a binder for her और मैं laminate कर दी थी उसको क्योंकि binders are very expensive. तो वो wipe and clean करेंगे, let her use it again and again. तो उनको स्कूल में भी एनरोल करी थी एंड फेलो पेरेंट्स जो घर पे आते, दे सॉ इट एंड दे वर लाइक आप कहाँ से लिए ये इतना अच्छा है, डिड यू गेट इट फ्रॉम अब्रॉड? आई वाज लाइक आई मेड इट. एंड वो जो शौक मैं उनके चेहरे पे देखी दैट आई वाज लाइक मतलब क्या? तो देन शी टोल्ड मी ऐसा कैसा आप ये बना रहे खुद से, तो आप बेच रहे क्यों नहीं, आप हमको दे दो, वैसा स्टार्ट हुआ. तो मैं एक मॉम को दी एंड आई सॉ द रिएक्शन ऑफ हर चाइल्ड. उनका बच्चा उससे इंटरेक्ट कर रहा, मेरी बच्ची का क्लासमेट, माशाल्लाह. तो मैं वो देखी एंड आई सॉ द रिएक्शन ऑन द चाइल्ड्स फेस एंड इट क्लिक्ड. I knew के this is something I want to do. तो वहाँ से it started picking up. I think one material led to another, फिर one workshop led to another, फिर वहाँ से फिर regular monthly program started. So it just scaled, तो all because I understood कि बच्चा देख के सीखेगा. That was the concept that led to all of this. माशाल्लाह. So it came like a flow. Yeah, it came like a divine flow. Mashallah, mashallah. So beautiful. And then it led to Barka Tales. It led to Barka Tales, and I think looking back now, जो भी मेरे रेज्यूमे अगर आप मेरा देखेंगे तो आप बोलेंगे ये कौन, मतलब क्या पागल इंसान लिखा है ये, मतलब क्या है ये इंडस्ट्रीज इतने. लाइक आई वर्क in events, I worked in sales, I worked in HR, and I think luxury brands, everything. And ऐसा है कि भाई मतलब where did she find contentment? Why is she skipping here and there? उसके बाद I think once I had my daughter, I did Montessori, AMI से करी, and then I did Islamic Montessori because I wanted to see further कि how does Montessori connect with Islam. तो फिर मैं came across Rumi and वहाँ से then I took Islamic Montessori training. साथ ही साथ I was like अब मैं income कैसे generate करूँ घर पे बैठ के. Right. So I did digital marketing from ISB. I was Okay. like digital marketing सीख लेती हूँ and घर से I anyway love designing. So I'm inclined towards art. So I thought कि I'll do something in this field. जैसे social media marketing बहुत चल रही थी वो time पे, तो I was exploring options जो मैं घर से कर कर सकूंगी. सकते हैं. So even then I was so lost. I think by जैसे बरका टेल स्टार्ट होने के थोड़े महीने पहले I was so lost. मैं सोची I've done so much, I've failed. कोई चीज में मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा कि मेरे को कुछ Satisfaction नहीं कंटेंटमेंट मिल रहा है. है, मैं ये कोर्स कर ली, वो कोर्स कर ली, नथिंग इज अलाइनिंग, मतलब हो रहा क्या, आई वेस्टेड सो मच ऑफ मनी. मेरे को ऐसा समझ में आ रहा था कि कुछ मतलब व्हाट्स हैपनिंग. ऐसा था कि भाई बोट में डाल के मेरे को ढकल दी ओशन में एंड आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग, Right, बट right. इतना यकीन था मेरे को दैट अल्लाह इज गाइडिंग दिस बोट. सो आई एम श्योर कोई ना कोई शोर पे उन्हों रुकाएंगे इसको.
एक लीप ऑफ फेथ जो a लेते leap हैं। of faith, you can literally say a leap of faith कि भाई भरोसा करके बस आँख बंद करके आई लेट इट गो। लाइक ठीक है देखेंगे, लेट्स सी ये कहाँ जाने वाला है। बिकॉज़ इंसान पे भरोसा करके देख चुके हैं। आई थिंक ज़माने पे भरोसा करके देख चुके हैं। एक बार अल्लाह ताला पे भरोसा करेंगे एंड जस्ट लेट थिंग्स बी। एंड बरका टेल्स का आइडिया जब आया, I'm honestly speaking, I'm using every degree I studied. I'm using digital marketing. I'm doing my own marketing. I'm using the designing courses I did because I designed the creatives, everything myself. I'm using the Montessori principles because वो बच्चों को सिखाने में सिखाने the में। way they learn that is very helpful. I'm using Islamic Montessori because I've integrated like उनका जो integrated curriculum है I've bought that into Baraka Tales. So everything fell in place like a literally like connecting the dots. Today it's like everything I studied I'm using. तो अच्छा, आज it makes sense that okay looking back कि अच्छा इसलिए हुआ, अच्छा इसलिए I did that course at that time, अच्छा इसलिए this happened at that time. So ये भी एक सलाहियत है that you need to understand if you are in a place today जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो रहा क्या, and आपको ऐसा दिख रहा था मैं explore कर रही हूँ, मैं try कर रही हूँ, it's not working out. मेरा suggestion is to women and girls like that कि hold on, hold on. एक तो है कि रिस्क के लिए डरो मत आप, बिकॉज मैं पर्सनली वो जगह पे से निकली हूँ जहाँ पर ऐसा था सिचुएशन कि मेरे को मालूम भी नहीं था कि मेरी नेक्स्ट मंथ की इनकम आएंगी कहाँ से। एंड अल्लाह अकबर। मेड्स है, सैलरीज डिपेंडेंट है, एंड देयर सो मेनी थिंग्स लाइक बिल्स एंड ऑल दीस थिंग्स, राइट, एंड आई राइट, डिडंट नो राइट, कि भाई कहाँ से आने वाला है, होने क्या वाला है। राइट। तो आई जस्ट टुक दैट लीप ऑफ फेथ एंड आया आइडिया, चलो ऐसा करेंगे, लेट्स सी, एंड माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इट आइडिया तो आया बट इट टुक टाइम। Of course वो scale करने भी time लगा, and to get to this level of course it took some time. So I suggest always have a backup plan, and if there is something you want to focus on, आपको दिख रहा है कि this is something I want to do, stick to it, give it time. अपने पास I think the thing is हैदराबाद में especially I think young girls is they give up very easily. राइट, एक 2 महीने ट्राई करेंगे, 3 महीने ट्राई करेंगे, if it's not working out I give up. बट डोंट डू दैट, आप फेथ रखिए अल्लाह ताला पे। अगर उन्होंने आपको दिल में जगाए हैं, वो चीज़ का आइडिया दिए हैं, वो चीज़ की उम्मीद दिलाए हैं, तो ही इज गोइंग टू गेट यू थ्रू इट एज वेल। वो भी होने वाला है कि जरिए खुद ही बनाने वाले हैं, आपको बाद में समझ में आने वाला है कि हाँ ये भी एक जरिया ही था। बिल्कुल, सो दैट इज द एडवाइस कि होल्ड ऑन, हैव फेथ एंड थिंग्स विल वर्क आउट। इंशाल्लाह। अब आप ऑनेस्टली थोड़ी चीज़ें बोलिए कि जब आप डिसीज़न लिए जॉब छोड़ देने का, तो घर में क्या रिएक्शन था घरवालों का? क्योंकि आप लैक्स में कमा रहे हैं, फिर वहाँ से ज़ीरो की जर्नी पे आ रहे हैं, तो रिएक्शन क्या था घरवालों का? So I think मेरी लाइफ में स्पेसिफिकली my mother has been the biggest strength, the biggest support system, and she is my role model. So that's again why I thought कि मनाल मेरे से ही सीखेंगे, because मैं उनसे ही सीखी। एंड मेरे लिए कैसा था, मम्मी वाज ग्लोरीफाइड, मैं उनको ऐसा देखती थी कि वाओ शी इज, रोल मॉडल। मतलब शी वाज अ रोल मॉडल, शी वाज इंडिपेंडेंट, शी हैड हर, तो उन्होंने भी शी वाज वर्किंग एट द टाइम, तो उनको फाइनेंशियल वो था, she had her independence, and I think the way she handled herself, the way she interacted with family members, जो उनका बोलते ना कि और ग्रेस या her grace, her manners, ये सब चीज़ें I picked up. And क्या होता था that when I became a teenager, I think she was very clear about education, and she was very वो importance थी उनको कि अहमियत थी कि मेरी बच्ची पढ़ना चाहिए, and the best of education I have to give her. तो वो शुरू से था कि मम्मी was very focused on that part, and also apart from that she never let me cut short with excuses. ओके। बहाने कभी नहीं बनाने देते थे, she used हार्ड to be वर्क। like कैसा भी करना है एंड हार्ड वर्क करना है, आपको एग्जाम है टेंशन मतलब आपको करना है, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं कि भाई नहीं आई डोंट वांट टू डू इट, नहीं, she used to push me. So she gave me that freedom to explore. So I think मेरा हुआ like Nasser में I did my schooling till 10th, and then Vilamari में I did my inter and graduation. After that मैं chartered accountancy भी करी. I did the exams first 2 years kari, and then I started my articleship. That's when I understood that this is not for me. ओके, Because I think one thing, Doc, we also have to understand कि अगर आप कोई चीज़ में अच्छे हैं, अगर आप ये चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको सुकून भी दे। राइट, दैट राइट, आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है वो आपका करियर बन जाए। हो राइट, सकता है आप यू डोंट लाइक कुकिंग, बट यू आर गुड एट इट, ऐसा राइट, भी है। सो मेरे को एक था कि दिस इज़ नॉट, ऑल्दो आई एम एन एक्सीलेंट इन अकाउंट्स, एंड मेरे को हमेशा 99s, वो भी हैंडराइटिंग की वजह से काट देते थे मार्क्स, आपकी डॉक्टरों की हैंडराइटिंग की चाहिए मेरी भी, अनफॉर्चुनेटली, तो यूज्ड टू कट मार्क्स फॉर दैट, बट आई यूज्ड टू स्कोर वेल। तो मेरे को ऐसा दिख रहा था हाँ, चार्टर्ड दिस इज़ अकाउंटेंसी इज द नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आई एम गुड विद अकाउंट्स।
बट वो अनईजीनेस, अगेन आई टोल्ड यू, शुरू से मेरे को अनईजीनेस रहती थी कि भाई दिस इज नॉट फॉर मी, यू नो. तो आई स्विच गेयर्स वो टाइम भी. एंड मम्मी एज ऑलवेज वाज वेरी सपोर्टिव कि तुमको जो सही दिख रहा तुम करो बेटे. ऐसा नहीं कि मैं इतने पैसे डाल दिए अब तुम क्या कर राइट, रहे, यू नो, वैसा कुछ नहीं था. शी गेव मी द फ्रीडम कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट. तो मेरे को था कि भाई एमबीए, बिकॉज एवरीबडी इज इनटू बिजनेस एंड वो टाइम पे इट वाज बूमिंग. राइट, तो मैं बोली कि एमबीए ट्राई करेंगे. तो शी सेड के देखो बेटा ऑलरेडी इसमें इतने पैसे चले गए, अब आप खुद से अगर सीट सिक्योर कर रहे हैं फील फ्री, गो फॉर इट. तो मैं बोली अब मैं खुद से सीट सिक्योर कर लूँ, बोलते क्या मतलब व्हाट. देन आई सेड यू नो अटेम्प्ट करी. एंड अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जिस दिन आई सेट का एग्जाम था उसके एक हफ्ता पहले मेरे को रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी करना पड़ा था आई में, यू नो, ओह! सडन अल्लाह डिटैचमेंट हाफ़िज़, हुआ था, इमीडिएटली दे टुक मी फॉर सर्जरी. सो बिलीव मी मेरे चश्मे में एक साइड बैंडेज, यू नो, आई एम नॉट ओके, सपोज टू लुक थ्रू इट. अल्लाह सो अकबर। वो एग्जाम के दिन ऐसा था कि भाई अब मैं क्या, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं सीए छोड़ दी, अब मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ. एंड यू नो अभी ऐसा हो गया, आई कांट ऑब्वियसली आई कांट गो एंड राइट द एग्जाम लाइक दैट. एंड देन माय मॉम पुश्ड मी, शी इज लाइक क्यों नहीं लिख सकते, मतलब क्या इश्यू है आपको. मैं बोली मम्मी आंख से दिख रहा भी नहीं मेरे को ये, बट आप प्रिपेयर करें, आप प्रिपेयर्ड है. तो हाँ आई एम प्रिपेयर्ड. शी वाज लाइक पुट अ बैंडेज और जाओ आप, यू नो. सो दैट इज द रेजिलियंस आई गॉट फ्रॉम हर कि यू नो कोई चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं है, कोई चीज को कट करने की जरूरत नहीं है, वर्क अ वे आउट. यू नो शी लिटरली पुश्ड मी एट दैट टाइम एंड आई वाज लाइक ठीक है, यू नो, चश्मे को लगा लिए वो बैंडेज एंड आई माशाल्लाह, वेंट एंड आई रोट विद वन आई. सोचो आप. माशाल्लाह, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई सिक्योर्ड अ गुड रैंक एंड मेरे को मिली सीट, मुस्तफा हमजा कॉलेज मिली. ब्यूटीफुल, I got the ब्यूटीफुल, seat there. So, you know, these, I'm just giving you one example, but ये चीज़ें मेरे को shape कर रहे हैं. You know, I understood कि you don't have to give up. Work a way out, एक रास्ता निकालेंगे, देखेंगे कि कैसा हो सकता है, you know. तो ये जो मेरे को वो एज में डाले थे, वो अभी भी मेरे को बहुत काम आई. And I hope to pass it on to my daughter, but let's see, you इंशाल्लाह, know, inshallah, इंशाल्लाह। बिइज़्निल्लाह के, you know, if I pass it on to her, even I think 20-30% of what she's passed on to me, she's going to be a brilliant kid. You know, उनको एक तो अल्लाह ताला से connection रहेगा, and secondly, you know, Do you this think we that are no losing excuses. all these things in gentle parenting nowadays? See, थोड़ा gentle फर्म और टफ parenting, रहना ज़रूरी है बच्चों के साथ? I'll tell you because I think शुरू में जब, as I think with all new mothers can connect with this part, कि अपन gentle parenting हाँ, वो करेंगे, डर अपन बहुत मारेंगे है, नहीं, and राइट। अपन डराएंगे नहीं, and you know, especially even Montessori says the same thing. You don't have to, honestly speaking. So for me, I don't मतलब मार तोड़ तो नहीं करती हूँ मैं उसके साथ, but yes, I do lose my cool sometimes. So मैं क्या करती हूँ, I draw lines. Okay, I tell her कि you know this is going to be harmful to you. And अगर उन्हें सोफे पे चढ़े तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज कि मैं उस पर चीखूंगी बेटे ये गिर जाते, यू नो, दैट इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट. बट मैं बहुत सेल्फ कंट्रोल लगता, बट आई कीप क्वाइट एंड आई सी लेट हर फिगर इट आउट ऑन हर ओन. गिर गए, next time she doesn't go near that sofa, you know. So she's figuring it out on her own. मेरा सी और एक चीज है कि भाई एक बार मैं सीख के देख भी ली, इट्स ऑफ नो यूज. नहीं सुनते, सुनना ही नहीं है, मतलब उनको खुद ही करके देखना है. तो वो मैं समझ चुकी हूँ कि वाई वेस्ट माय एनर्जी, वो बच्चा वैसे भी नहीं सुनने वाला है. लेट लेट हर ट्राई इट ऑन हर ओन. एंड सी एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, व्हेन दे अंडरस्टैंड कि दिस इज हार्मिंग मी, दिस इज नॉट सेफ, दे वोंट डू इट एनीवे. वो खुद ही नहीं करते. कांच की ग्लास आप दे दो, एक बार उन्हें गिराए और फोड़े तो उन्हें सेकंड टाइम खुद ही नहीं करेंगे. दे आर गोइंग टू बी केयरफुल, वो अधर रखेंगे उन्हें, आप वो खुद नोटिस करके देखिए. सो बच्चे डू, दे डू अंडरस्टैंड, यू नो. एंड आई थिंक वो लोग अपन जितना समझते हैं उससे बहुत ज्यादा डेप्थ में दे अंडरस्टैंड. एंड अपने को ऐसा दिखता है कि भाई वो एज में उन्हें उतना यू नो इतना गहराइयत से कहाँ समझते. अपने को सिखाना पड़ेगा, अपने को बोलना पड़ेगा, अपने को समझाना पड़ेगा. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उन लोग इतना इंट्रिकेट तरीके से समझ रहे कि आपको उतना, यू नो, यू वॉन्ट इवन अंडरस्टैंड कि उन्हें क्या हद तक देख रहा. अपने को समझ में नहीं आ अपने रहा को कि बच्चा बिकॉज क्या आप समझ रहा। आप ठहर के आईने के सामने मेकअप करिए, उन्होंने आपके स्ट्रोक्स तक नोटिस कर रहे हैं. लाइक खाली ब्रश पकड़ के यूं नहीं करेंगे, आप देखिए आप जैसा अपवर्ड लेंगे उन्होंने भी वो करेंगे. सो वो लोग उतनी गहराई से आपको नोटिस कर रहे हैं, उतनी यू नो छोटी 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 थिंग्स भी आपके नोटिस कर रहे हैं. दे आर नोटिसिंग एवरीथिंग, यू नो. सो यू डोंट हैव टू बेसिकली टेल देम. अपने को ऐसा लगता है कि हम उनको सिखाएंगे, हमको उनको बोलना है, बट इट्स नॉट नीडेड बिकॉज आई थिंक बच्चे खुद ही यू नो देख के एंड एज आई सेड देख के ज्यादा सीखने वाले हैं rather than you know listening. टच से एक तो you know they touch things and they understand. taste से they use all their senses basically to understand. So 3 to 6 is that age where you know they are picking up a lot of things subconsciously and it's all going in. So again the idea behind Baraka Tales was that you know एक Islamic environment, you know, where they are राइट, coming and seeing जैसा कि हमारे posters है और you know material ले लिए तो जो characters है everything is connected, like hijab पहने हुए, you know, Islamic architecture integrated and Arabic you know used as a decorative art, and all these things do matter, you know. They start absorbing
subconsciously that this is Right. also normal, Right. because you know, again, that कंटेंशन दैट आई हैड कि भाई बच्चे स्कूल जा रहे, इतने चीज़ों से एक्सपोज हो रहे, उनके हर फेस्टिवल से एक्सपोज हो रहे, एंड यू नो बर्थडे से एक्सपोज हो रहे, दे आर एक्सपोजिंग गेटिंग एक्सपोज टू, आई थिंक, कपड़े पहनने के तरीके, यू नो, सो मेनी Right. थिंग्स। तो ये भी रहना चाहिए, दिस शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ हु दे आर, कि उनको समझ में आए कि एक एनवायरमेंट ऐसा है वेयर आई कनेक्ट विद माई आइडेंटिटी। You know, I go there and they're all Muslim kids around me. So सब एक दूसरे को सलाम कर रहे, you know, सब एक दूसरे के साथ खा रहे, and they're saying Bismillah together, they're saying Alhamdulillah together. So उनको ये समझ में आता है कि, you know, एक community feel, एक, you know, a place where they can be They belong. themselves, you know, and a place where they feel कि, as you said, they belong They here. belong. So that is what I wanted to give them. तो मेरा intention ये नहीं है कि, you know, I cannot do anything a mother can't do. हर अम्मा अपने, she knows best. I mean, आप एज अ मदर आपको मालूम है कि आपके बच्चों के लिए बेस्ट क्या है, आपको मालूम है कि क्या एज में उनको क्या इंट्रोड्यूस करना है, यू नो, इन व्हाट वे आप उनको इस्लाम सिखाएंगे। अम्मा से बड़े टीचर कोई नहीं हो सकता। मेरा काम बस ये है दैट, यू नो, वो बच्चा ये समझे दैट माय फर्स्ट कनेक्शन हैज टू बी टू अल्लाह ताला। Yes. Allah Ta'ala is always going to be there for me. Another, I think, selfish motive is, you know, my daughter gets an environment of like-minded Right. children around Right. her. Right. I get an environment of like-minded mothers around me who Right. want to raise a child the same way. Right. You know, because आजकल क्या है, अम्मा को विलेज भी तो नहीं है। एक कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत Yeah, है अपने yeah. को। The क्योंकि community जैसा of मैं भी like-mindedness. बरका टेल्स में फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को लेके आई, तो मेरे को इतना अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। ये हम सब फॉरेन में बहुत ज़्यादा देखते हैं, अब्रॉड में है ये कल्चर, जहाँ पर मदर्स एक कम्युनिटी बना रहे हैं और एज़ यू सेड लाइक माइंडेड मदर्स आर कमिंग टुगेदर। लेकिन हैदराबाद में आई डिडंट फाइंड एनी बट एनीथिंग बट बरका टेल्स, सो आई रियली लाइक्ड इट, द कॉन्सेप्ट एंड जो स्लोनेस एक यहाँ पर है ना, स्लोनेस से जा रहा है, रश नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, एक टारगेट्स का, एक असेसमेंट्स का रश नहीं है कि हाँ वी आर टेकिंग इट एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आके बच्चा डिटॉक्स कर सक रहा, Yes, रिलैक्स कर सक you रहा can say. और सुकून से अपने दीन को सीख सक रहा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल Alhamdulillah. ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ बरका टेल्स। कैन यू गिव अस एन आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी तो आजकल मदर्स बहुत सुन लिए, मॉन्टेसरी स्कूल में डालना है बच्चों को, जहाँ पे टीचिंग भी मॉन्टेसरी के हिसाब से हो रही है और एकदम कूल है। Right. तो व्हाट एग्जैक्टली इज इस्लामिक मॉन्टेसरी एंड हाउ डिड यू कम टू इट? So as I said, मैं पहले तो Montessori ट्रेनिंग ली थी। At that time मेरे को मालूम भी नहीं था कि इस्लामिक Montessori भी है। Then I came across Islamic Montessori and I wanted to know कि भाई ये कैसा है? Because what मैं जो चीज़ ढूंढ रही थी was कि भाई मेरी बच्ची अभी 2 साल की है, तो मैं उसको इस्लाम कैसा इंट्रोड्यूस करूँ? You know, अभी तो कुरान भी नहीं स्टार्ट कर सकते, नमाज भी नहीं स्टार्ट कर सकते, एंड छोटे-मोटे दुआ भी उन्हें बोल नहीं सकते because she Right. can't talk. So उसको कनेक्शन होएगा कैसा दैट उन्हों मुसलमान है, एंड यू नो कैसा। सो this on searching these things, कि ये ढूंढते ढूंढते मेरे को दिखा, आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल व्हिच टॉक्स अबाउट फितरत, बच्चे की फितरत कैसा बिल्ड होती है, बच्चा कैसा फितरत से ही पैदा होता है, यू नो, नेचुरल डिस्पोजिशन जो बोलते हैं वो लोग मॉन्टेसरी में, इस्लाम में हम फितरत बोलते हैं वो चीज़ को। बिल्कुल। सो बच्चा पहले से ही यू नो वही फितरत पे पैदा होता है, and वो डेवलप हो रही टिल द टाइम उन्हें 6 साल का है। सो दैट लेड मी टू इस्लामिक मॉन्टेसरी, ओके। एंड वहाँ से मेरे को पता चला कि देयर इज अ होल ब्रांच वेयर रिसर्च इज ऑलरेडी बीन डन, एंड दे हैव सीन प्रिंसिपल्स जो इस्लाम मॉन्टेसरी में है, जो इस्लामिक मॉन्टेसरी में भी सेम है, यू नो, थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स व्हिच आर मैचिंग। सो वो चीज़ों को वो लोग इस्लामिक रूट्स दे चुके हैं, जैसा नेचुरल डिस्पोजिशन है, सो फितरत, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो कनेक्ट हो चुके हैं। सो मैं उसके बारे में आई टुक अ कोर्स, आई स्टडीड अबाउट दैट आल्सो, दैट यू नो मैं बच्चे को कैसा ये चीज़ से वो करूँ। तो छोटे-छोटे एक्शंस, यू नो, स्मॉल थिंग, जैसे ग्रैटिट्यूड बोलते हैं इन मॉन्टेसरी, दैट इज़ अगेन अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलते हैं वो चीज़ बिल्कुल। को, शुक्र बोलते हैं हम वो चीज़ को। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे को सिमिलर दिखे। दैट्स द रीज़न आई वाज़ कन्विंस्ड अबाउट इस्लामिक मॉन्टेसरी, एंड आई लर्न्ड इट ताकि मैं मेरी बच्ची को सिखा सकूँ ये चीज़ें। राइट। And I think Manal was the biggest reason I did all these things, and that led to, you know, me exploring options for other children also, कि जब मेरी बच्ची भी सीख रही तो why not, you know, teach it to other kids as well. So that's how Islamic Montessori came into the picture, that you know 3 to 6 के age में when children are learning, एक तो मैं बोली आपको subconsciously and sensorial तरीके से सीख रहे and visual से सीख रहे। So ये age में कैसा हम इसको integrate कर सकते हैं, you know, how can we get small Islamic concepts into this. So I think ये age में नमाज तो खैर of course starts at 7. So at this age जो age appropriate topics from Islam that we can teach them. So I'm not completely doing Montessori at my place, because at the end of the day Montessori also is, I think, Hyderabad में एक आ गया है Montessori को भी लेके कि बच्चा
इज कुछ सिखाने वाले ही नहीं है, वो फ्री रहेगा, यू नो, ही कैन जस्ट कम प्ले एंड डू थिंग्स एंड कम बैक। सो दैट अगेन इज अ कंटेंशन, बिकॉज पीपल थिंक दैट मॉन्टेसरी में बच्चा कुछ सीख रहा नहीं, यू नो, ओके, उसको प्रेशर राइट, नहीं डाल रहे आप, एंड यू नो राइट, बस एज अ प्ले स्कूल खाली जा रहा, खेल रहा, आ जा रहा। बट एक चीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, आई थिंक, इज दैट वो बच्चे का खेल ही उसकी सीख है। यू नो, जब उन्होंने खेल रहे हैं, उन्होंने खाली खेल रहे हैं नहीं, दैट इज हाउ दे आर लर्निंग। जैसा कि 2 बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, एक यू नो शॉपकीपर बन रहे हैं या व्हाटएवर, आप आपके बच्चों को नोटिस करके देखिए, जब उन्होंने रोल प्ले कर रहे हैं, द वे दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, जैसा आपस में बात कर रहे हैं, आपस में जैसा वन बाय वन टर्न्स ले रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं या आपस में छोटी बहुत बार्गेन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वही तो उनको लाइफ स्किल सिखा रहे हैं। यू नो, दैट इज हाउ दे लर्न थ्रू प्ले। दैट इज व्हाट इट इज, यू नो, दैट इज व्हाट मॉन्टेसरी सेज, प्ले इज द वर्क ऑफ द चाइल्ड। सो बच्चा का काम प्ले से ही सीखना है। That is how they learn. So that is why I didn't want to properly frame it as a Montessori institute. I said Montessori inspired. ओके। Because the material है that is Montessori, the freedom I give the child to pick up, उनको जो activity करना है उन्हों करे, उनको जो time पे करना है उन्हों वो करे, बट that freedom I गाइडिंग give देम them. टुवर्ड्स इट, राइट? ऐसा नहीं है कि बस बच्चों को डाल दिए, छोड़ दिए, बस खेल लो। The main thing in, गाइडलाइंस तो है आपके पास, एक कि एक yes, रास्ता बनाएँ कि हाँ भाई, आप लोग ये बाउंड्रीज़ के अंदर आप ये yeah, कर that सकते हैं, again is उसमें Montessori. Okay, you draw lines, you राइट, tell them the boundaries, and you let them explore. राइट। You know, so you have to be there as an बस adult. एक एनवायरनमेंट Yeah, प्रोवाइड you कर रहे हैं provide आप। the environment, and you the main basic main most important thing जो Montessori में है, आप interfere मत करिए। ओके, You know, let the child explore on their own, let them take their own pace, और उनके काम में या उनके play में आप interfere मत करो, आप उनको करने दें, आप उनको figure out करने दें। So these principles of Montessori I have applied in my club as well. जब बच्चा कुछ काम कर रहा है या बच्चा कुछ सीख रहा है, मैं इंटरफियर नहीं करती हूँ। आई सिट बैक और मैं देखती हूँ कि पहले ऑब्जर्व सम करते का, हैं। आई रियली ऑब्जर्व द चाइल्ड एंड आई सी के वो समझने की सलाहियत है, समझ रहे, इंटरेस्ट है नहीं है, क्या हद तक है। यू नो, बिकॉज सम थोड़े बच्चे क्या है, मेरे पास वर्कशीट्स करते, यू नो, दे सिट एंड recently I'll tell you an example of a camp I had this upward hearts camp, जहाँ पर हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे। So gratitude and observance. Subhanallah is, you know, I tell them कि wow, you know, you observe something and you say wow, and that या is Subhanallah. So वो जब सिखा रहे थे, the girls were sitting nicely, and उनको मैं वो फिगर्स दी थी, आप कट करके अल्हम्दुलिल्लाह के कॉलम में लगाइए या सुभान अल्लाह के कॉलम में लगाइए, तो वो कट कर रहे, चैन से बैठ रहे, एंड द बॉयज डिडंट वांट टू सिट। बोले कि मैम हम बैठना नहीं चाह रहे, मैम हमको कोई करना नहीं है, यू नो, हमको खेलना है, हमको खेलना है, यू नो, दे वांट टू रन अबाउट। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं अभी ये लास्ट मिनट लाइक मैं क्या करूँ उनको, तो देन आई हैड दिस सेंसरी टेबल जिसमें 2 ट्रेज है, एंड आई हैड द टॉयज अराउंड, तो मैं उनको दी वो टॉयज, एंड आई टोल्ड देम, एक कोने में टॉयज रखी, एक कोने में टेबल रखी, एंड आई टोल्ड देम कि बेटा एक बिन सुभान अल्लाह की है, एक बिन अल्हम्दुलिल्लाह की है, आप वहाँ से टॉय लाइए, फिगर इट आउट कि ये अल्हम्दुलिल्लाह है या सुभान अल्लाह है, एंड यू पुट इट। तो बच्चे भाग रहे हैं, दे आर रनिंग, गेटिंग एन एप्पल, देख रही है एप्पल, अच्छा आई एम थैंकफुल फॉर एन एप्पल, ये अल्हम्दुलिल्लाह होगा, यू नो, उसमें डाल दे रहे, दे गेटिंग अ फ्लावर, फ्लावर ये तो अल्लाह की बनाई हुई चीज है, तो हाँ सुभान अल्लाह होंगे, तो दे आर रीजनिंग, दे आर माशाल्लाह। डूइंग दैट, एंड यू नो दे आर लर्निंग इन अ प्ले बेस्ड वे। देन अदर थिंग इज दैट, यू नो, उनको फोर्स करना भी जरूरी नहीं है, अगर वो वैसे नहीं सीख रहा, यू चेंज योर अप्रोच, यू नो, आपके अप्रोच आप चेंज करिए कि भाई मैं कैसा उसको सिखाऊं ये चीज इन अ वे जो उसके लिए अप्रोप्रिएट है, जरूरी नहीं है कि उसको राइट, बिठा के ही कराओ या वर्कशीट से ही सिखाओ, या यू नो राइट, why force the child, you know, let him figure it out on his own, and yeah, see, we as adults अपना काम है ये सोचना कि उसको कैसा सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट आप सिखाइए, बट सिखाइए ऐसे तरीके से जो बच्चे को भी इंटरेस्ट आए, यू नो, थोड़े बच्चे खेल के सीखना चाहते हैं, स्पेशली माय डॉटर, राइट, बीइंग अ गर्ल, उन्होंने नहीं बैठते एक जगह, यू नो, 10 मिनट से ज्यादा उनको फोकस नहीं रहता कोई चीज पे। इफ आई डू इट इन अ प्ले बेस्ड वे, शी लव्स इट, उन्हें खेल में सीख लेते। सो दैट्स अनदर रीजन मैं सोची कि जिसके पास यू नो ऐसे बच्चे हैं जो बैठना ही नहीं चाह रहे, आप आइए, यू नो, हमारे पास आइए, बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल दोस किड्स, एंड वी आर डूइंग इट इन यू नो प्ले बेस्ड वे। So mostly now my focus is also shifted from worksheet, although I design it बनाती हूँ worksheet में हर topic पे, but we are putting more of these approaches. Even the Arabic जो हरकत है, जो सिखाना है, वो भी हम लोग mostly play based तरीके से ही कर रहे हैं, because if you understood कि आजकल के बच्चे, you know, they are very hyper and you have to keep up with them, वो एक जगह बैठ के वैसे भी नहीं सीखने वाले हैं, so let's not waste time, वो खेल में ही सिखाएंगे। राइट। रिसेंटली हमारा एक पॉडकास्ट हुआ डॉक्टर अमरीन के साथ, जो पीडियाट्रिशियन है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे समझाए कि देखो, बच्चे हैं ना, एक बीज के जैसा रहते हैं। तो पेरेंट्स का काम ये है कि बीज है, आप उसकी मिट्टी है, आप उसका पानी है, आप उसकी सनलाइट है, आप उसका ऑक्सीजन है, हवा है आप उसके लिए। तो आप एज़ अ पेरेंट आप लोगों को सिर्फ़ ये एक्सटर्नल सराउंडिंग्स देख लेना है। बस बच्चे को छोड़िए, उसको ग्रो होने दीजिए, उसको बढ़ने दीजिए जैसा एक बीज ग्रो हो रहा।
अगर वो एप्पल का झाड़ है तो आप संतरा एक्सपेक्ट मत करिए। So she Yes, that's true. explained it so beautifully and I was like, yeah, how true is that? That is also there, यानी वो concept है even in Montessori that you know you आप अपने आप को ऐसा सोचिए that जैसा आप बोले same thing मैं भी यही सोचती हूँ कि भाई एक मेरे को बीन्स दे दी गई and you know मैं उसकी फार्मर हूँ, you know मैं उसकी गार्डनर हूँ एंड मेरे को ये देखना है कि पहले तो कि कौन सी मिट्टी में ये बीज पनपने वाली है, यू नो Right, कौन सी मिट्टी इसके लिए सही रहेंगी। सो व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑप्शन जैसा मोंटेसरी भी देख रही थी उसके लिए, तो इज दिस द राइट फिट फॉर हर, वो अपना काम है। एंड यू नो अनदर थिंग इज कि उसको कितनी सनलाइट देना है, कितना right, पानी, सी right, सनलाइट पानी एंड ऑल, एज पेरेंट्स अपन ये नहीं बोल सकते कि हम है वो हर चीज। मेरा यू नो जरिया सोचने का अगेन तरीका भी ये है कि सनलाइट अल्लाह ताला देने वाले हैं आपको, पानी अल्लाह ताला देने वाले हैं आपको, हर चीज अल्लाह ताला से ही आने वाली है आपको, बट आपको ये देखना है कि आपकी बीन्स के लिए कितनी सनलाइट जरूरी है, right. आपके So बीन्स true. के लिए कितना पानी जरूरी है, दैट बैलेंस आप करिए एज पेरेंट्स। बिकॉज यू नो यू कैन नॉट जस्ट लीव अ चाइल्ड स्कूल में डाल के भाई मैं स्कूल में डाल दी एंड मैं नसर बेस्ट ऑफ द स्कूल में डाल दी एंड दैट्स डन, यू नो टीचर्स विल टेक केयर ऑफ इट। सो आप बोल रहे हैं कि पानी टीचर बराबर डाल रही है आपके सीड को, सो यू थिंक कि वो बढ़ जाएगा, बट आपको ये भी कंसिडर करना है कि उसको सनलाइट भी आना है, यू नो Right, एंड आपको सीजन्स का भी ध्यान रखना है। अगर बारिश हो रही एंड उन्हें पानी डालते जा रहे, आपका काम है वो झाड़ को आपके पौधे को बारिश से बचाए, टीचर का काम नहीं है वो, you know so these other factors as parents you are doing the work behind it, a teacher definitely is doing the most integral part, पानी के बगैर झाड़ बढ़ने वाला नहीं है, बट उसके सराउंडिंग्स जो है यू नो कितना यू नो उसको कितना कौन सी मिट्टी देना है, फर्टिलाइजर कब डालना है, एंड यू नो ऑल दीज अदर फैक्टर्स इज इन योर हैंड एज पेरेंट्स। तो आई फील के यू नो पहले तो आप ये समझिए कि चीजें आने वाले हैं अल्लाह ताला से, एक तो आपके कंट्रोल में रहेंगे डेफिनेटली, दैट आपको ये ऊपर रहेगा कि बच्चे को कितना एक्सपोजर देना है ये चीज से, कितना बचाना है ये चीज से, दैट्स गोइंग टू बी इन योर कंट्रोल। right, एंड सर्टेन थिंग्स आर नॉट इवन गोइंग टू बी इन योर कंट्रोल, जैसे right, वेदर रहेगा, कभी वेदर right, अच्छा रहेगा कभी नहीं रहेगा, जैसे कि पियर्स हैं, जैसे कि क्लासमेट्स हैं, जैसे उनके दोस्त हैं, यू विल नॉट हैव कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स, बट यू विल नो कि कितना एक्सेस आपको वेदर में देना है, क्या आपको शेड रखना है, आर यू सपोज टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड फ्रॉम दैट एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड फ्रॉम दैट फ्रेंड, गिव योर चाइल्ड एन अम्ब्रेला, मतलब आप एक वार्निंग दे दें अपने फ्रेंड बच्चे को कि भाई ये फ्रेंड से आप यू नो keep a distance, yeah, you know don't believe everything he says, whatever it is, you know right. so these things are in your hand as a parent। so very good point, I think जो आपको डॉक्टर जो बोले हैं जी, it's a good point, I also think likewise, but I think in another way कि भाई एक step आगे सोचती हूँ मैं नहीं सही है। कि you know these things come from Allah Taala and the seed is yours, of course आपको seed उन्होंने दे चुके हैं, अब आप उसको कैसा प्लांट करेंगे एज अ फार्म, आप समझिए बस आप उसके फार्मर हैं, मेरे को बस you know चीजें रादर उसके देन अतराफ वो बीइंग एक करना है। टू मच कंट्रोलिंग करने के Yeah. बजाय, आप जो चीज़ आपके हाथ में आप जो कर सकते हैं, वो करिए। बट यू कांट इवन कंट्रोल, लाइक अब आप सोचिए अगर एक फार्मर है एंड उन्होंने सब कर चुका है, लाइक उन्होंने बेस्ट ऑफ द मट्टी में डाल चुका है, बेस्ट फर्टिलाइजर यूज कर रहा एंड यू नो बेस्ट तरीके से वो पौधे की केयर कर रहा, इवन देन द वेदर इज नॉट इन हिज कंट्रोल, यू नो इवन देन द वेदर इज राइट, नॉट इन हिज कंट्रोल, अगर अल्लाह ताला चाहे बारिश देना दैट देंगे, अगर नहीं एंड आपको सनलाइट ही देते जा रहे, सो देन अगेन दैट्स नॉट इन सही योर है, कंट्रोल, यू नो सो दे सही। आर, अब ये भी समझना है अपने को किसी अल्लाह ताला हैज गिवन यू दैट चाइल्ड, बट वो उनका ही है, and the राइट, child is anyway his राइट, and he knows what is going to happen and what is best for the child, you as the farmer can only do certain things, आप कितना ही कर सकते हो बच्चे के लिए, at the end of the day again that's why I say it's very important for mothers to be grounded and connected to Islam, because आपको भरोसा रहना चाहिए that Allah Ta'ala is going to do the best for my child, you know। रोहिना आज के बच्चे जैसा स्क्रीन टाइम्स बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए। तो आप क्या करते जब बच्चे आपके पास आते कि उन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते आपके एक्टिविटीज़ में रादर देन अगेन आस्किंग फॉर स्क्रीन्स या फिर वापस कुछ नहीं करते या जैसा बंद एक अपने आप को क्लोज कर लेके बैठ जाते। तो व्हाट डिफरेंट डू यू डू? सी द थिंग इज मेन चीज ये है कि आप जब बच्चे को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देंगे एंड ऐसा नहीं कि यू नो आप उसको किचन सेट दिला दे रहे हैं, आप बोल रहे प्रिटेंड करो भाई आप पका रहे, खेलता बच्चा यू नो कि बच्चे आई एम श्योर किचन सेट होगा उनके पास एंड उन्होंने उससे खेल रहे भी होंगे, बट आई थिंक 10-15 मिनट से बढ़ के क्या आप देखे उसको वो चीज से खेलते हुए, शी वोंट बोर बी हो एंगेज, जाते तो हैं। बोर हो जाते यू नो, और उसको आप अपने साथ किचन में लेके जाइए, उसको आटा दे दीजिए जब आप रोटी बना रहे हैं, और एक छोटा बेलन है छोटा गिरदा दे दीजिए आप उनको, एंड आप देखिए जब तक आपकी रोटी का काम फिनिश नहीं हुआ उन्हें खेलेंगे वो चीज से, यू राइट, नो तो आप उसको रियल एक्सपीरियंसेस में जब आप एंगेज कर रहे हैं तो इन्वॉल्व उनका करिए। भी, बिकॉज उन लोग समझ रहे हैं कि हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो काम की है, जो रियल है, बिकॉज सी उनको भी फर्क समझ में आ जाता कि ये जो मेरे को बस दे दिए खेलने के लिए एंड ये मेरे को सही में भी रोटी दिलवा रहे मेरे से, हो सकता है मम्मी इसको पका के मेरे को खिलाएंगे भी, you ओके, know so ये difference is what keeps the child engaged। so I'll give you an example, अब ये जो जिक्र कैंप मेरी आने वाली है 11th के दिन,
सो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ मेरे जो फुल फ्लैश्ड मैं करी थी मंथली प्रोग्राम, एक पायलट टेस्ट करे थे हम लोग एक मंथ के लिए, देखने के बच्चे आफ्टर स्कूल आ सकते क्या, एंड ट्वाइस अ वीक आएंगे क्या, एंड आए तो ट्वाइस अ वीक बस होगा क्या उनको. सो आई डिड अ एक्सपेरिमेंट एंड आई सॉ इन अप्रैल. तो ये जब कर रहे थे उसमें ये भी था, आई वाज टीचिंग देम जिक्र. Okay. सो वी टॉट देम अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह एंड अल्लाहु अकबर, जो तस्बीह पे अपने को पढ़ना है रात में. सो उनको वो सिखाया एज वर्कशीट्स में उनको दी थी, एंड आई गेव देम सुभान अल्लाह की वर्कशीट कराई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह की वर्कशीट कराई. एंड देन नेक्स्ट दिन बाय फिर बेटा सुभान अल्लाह का मतलब क्या है भूल गए. बिकॉज क्या हो रहा, गैप हो रहा, खाली ट्वाइस अ वीक आ रहे मेरे पास. Okay. तो वो जब सेकेंड वीक में आ रहे वापस और मैं उनको पूछ रही हूँ, दे आर फॉरगेटिंग इट. तो फिर मेरे को ये था कि भाई मैं कैसा उन लोगों को अहमियत ये चीज की बताऊं. तो मैं उन लोगों को क्या करी थी कि आई डिड अ कलर कोडेड तस्बीह फॉर देम. तो मैं 3 अलग अलग कलर की बीट्स दी उनको, एंड मैं उनको बोली कि आप बनाओ अपनी तस्बीह खुद से. सो दे वाले कभी क्या है मतलब तस्बीह क्या है, क्यों बनाना है, नॉर्मली आप बनाइए, देन आई टेल यू. तो जब उन लोग वो सुभान अल्लाह के लिए हम एक अलग कलर रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह के लिए एक अलग कलर, एंड अल्लाहु अकबर के लिए एक अलग कलर रखे थे. एंड आई मेड अ कार्ड, वो डिजाइन करी थी मैं कि ये कलर पे आपको सुभान अल्लाह बोलना है, ये कलर पे अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ये कलर पे अल्लाहु अकबर. तो पहले तो वो वर्ड याद हो जाती, देन जब उनको वो कर रहे थे मैं उनको उसका मीनिंग भी समझा रही थी, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डन सुभान अल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद देम, सो दे अंडरस्टूड द मीनिंग, उनको मालूम था. बट कौन सी बीट पे कैसा बोलना है, क्यों बोलना है, दैट दे डिडंट नो. तो जब वो तस्वीर खुद से बना रहे थे मैं उनको एक्सप्लेन भी कर रही थी. सो मैं क्या करती हूँ, मेरा एक ट्रिक भी ये है दैट मैं क्या करती हूँ, जो मेरा ट्रिक है इस, जब उन्हें काम कर रहा है मैं उससे जब बात करती हूँ जब उन्हें एंगेज रहते वो तस्वीर बनाने में, दैट्स व्हेन आई गो एंड सिट विद द चाइल्ड, और मैं उनको बोलते रहती हूँ पीछे से, Why देखो so? आप ये बना रहे ना बेटा, ये किस लिए बना रहे मालूम, ये ऐसा होंगे वैसा, बिकॉज वो टाइम पे उन्हें Okay. सुनते भी, बिकॉज Okay. एनी हाउ उनका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ है, तो दे लिसन टू यू, सुन के Okay. समझते हैं, उनको समझ में आता अच्छा इसलिए हम मेकिंग दिस, इसका कुछ मतलब रहने वाला है, ये मेरे को यूज होने वाली ये है. ट्रिक है मतलब तो बच्चों के दैट इज द दिमाग ट्रिक में कुछ आई ना. यूज, एंड सो वो बना लिए तस्बीह, एंड वो लेके गए घर को साथ में. दे टुक द कलर कोडेड कार्ड, एंड दे न्यू कि भाई जब पढ़ना है रात में, मैं उनको बोली सोने से पहले पढ़ो आप, एंड आपको जो भी बोलना है लाजिया आप बोल सकते हैं, या कुछ दुआ करना है आप कर सकते हैं, या आपको सेफ फील करना है, अगर आपको डर लग रहा, ऐसा भी होता है कि बच्चे डरते रात में थोड़ा, तो आप जब पढ़ लीजिए. सो दे हैड दैट कार्ड एंड दे न्यू कि ये बीट पे सुभान अल्लाह बोलना है, इसका मतलब तो दे ऑलरेडी नो. तो ये बीट पे तो उनको वो अहमियत तस्बीह की समझना शुरू हुई, दैट मैं खुद से बनाई वो तस्बीह, ये मेरी है, अब मैं इस पे पढ़ूंगी. सो दैट्स डिफरेंट देन यू जस्ट एक दुकान से लाया आप एक तस्बीह दे दो बच्चे को. Right. सो उससे ये फर्क है, जब उन्हें खुद कर रहा वो चीज, जब वो खुद कर रहे हैं एंड खुद समझ रहे हैं, दैट इज completely different this thing. And ये अगेन मैं मेरी बच्ची के साथ करी थी. सो आई टेस्टेड इट विद हर, बिकॉज हम लोग ट्रैवल करने वाले थे, तो मैं चाह रही थी कि भाई मैं कितना पढ़ पढ़ के उस पर फूकते जाऊंगी, मैं भूलते रहती हूँ बिकॉज आई एम ओल्ड, भूल जाती हूँ. तो मैंने उन्होंने खुद पढ़ लिया तो अच्छा नहीं है क्या बोल के, तो मैंने उनको तस्बीह बनवाई, बिकॉज उन्होंने भी भूल गए सुभान अल्लाह कब बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह कितने बार बोलना है, क्या करना है, याद नहीं रह रहा था. तो मैं उनको वो कलर कोडेड तस्बीह बनवाई थी व्हेन वी वेंट फॉर उम्रा. तो उनको कराई तो उन्होंने खुद से ही कर ले रहे थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रात में शी डज इट ऑन हर ओन. सो एवरी माशाल्लाह. नाइट उन्होंने करते, हैबिट या एक कभी हैबिट मैं क्रिएट भूल हो गई, गई. आदत हो गई उनको, एंड आई फॉरगेट एट टाइम्स, उन्होंने मेरे को याद दिला देते, मम्मा पढ़ेंगे. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, बीच में तो इतना फनी इंसिडेंट हुआ, दे हैव दीज हेयर बैंड्स विद द बीड्स, राइट राइट. राइट. तो एक बार वो था, तो वो दिखा उनको, तो वो लेके उस पे सुभान अल्लाह, मैं बोली क्या कर रहे हैं आप, मम्मा ये तस्बीह पढ़ना है ना, बीट मतलब शी कनेक्टेड इनटू दैट कि भाई कुछ भी उस पे कर सकते, तो किड्स आर किड्स, किड्स विल बी किड्स. तो ये है कि एक आदत आप इनकलकेट करिए, डू इट इन अ वे जो उन्हें खुद पर्पसफुली वो काम करे, ताकि उनको वो चीज की अहमियत समझ में आए कि भाई मैं बनाई, ये मेरे लिए है, मेरे को काम आने वाली है. सो दैट विल कीप देम एंगेज. तो वो टाइम पे जब वो बच्चा वो बना रहा है एंड ही नोस कि ये बने बाद में कुछ मकसद है ये चीज का, तो बीच में स्क्रीन पूछने का तो सवाल ही नहीं है. स्क्रीन इज समथिंग दैट गोइंग टू कीप देम एंगेज, सही बात है, बट दैट इज जो बच्चे को एक ज़ॉम्बी जैसा बना दे रहे, मतलब उनका कुछ सोचने की देखने की सलाहियत नहीं है, वो बस एक जोन में चले गए, एंड आप खींच के देखिए फोन, उनका ऐसा ही रिएक्शन रहेगा जैसा कोई ड्रग एडिक्ट, आप ड्रग खींच लो हाथ में से, कैसा रिएक्ट करते हैं बच्चे, वैसे ही रिएक्ट करने वाले, बिकॉज दैट आईपैड या जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं डिजाइन करा हुआ है इन अ वे कि वो बच्चा ज़ॉम्बी मोड में जाओ और उसको डोपामाइन हिट होते जाओ. लिटरली डोपामाइन हिट कम्स फ्रॉम हैविंग ड्रग्स. आप एक ड्रग लेंगे आपको डोपामाइन हिट होता है, वो छोटे रील्स उसको वही दे रहे. सो दे आर गेटिंग एडिक्टेड, ऐसा नहीं, एंड वी आर ऑल्सो एडिक्टेड. मैं बच्चों को नहीं बोल रही हूँ, अपन खुद रील्स when we doom scroll at night, I do that, I'm guilty. So when we doom scroll at night, we are also getting that dopamine hit. So मैं ये सोचती हूँ कि भाई जब मेरे को मालूम पड़ा कि डोपामाइन हिट इससे आ रही, तो then because I wanted to get de-addicted from doom scrolling, so मैं सोची कि डोपामाइन हिट और क्या चीज से मिलती जो मैं वो करके देखूं इस पर से हट के. So
आई डिस्कवर्ड कि आप कोई भी छोटा टास्क जब करते हैं आपको डोपामाइन हिट ही मिलता, अकम्प्लिशमेंट या एनी अकम्प्लिशमेंट। सो मैं जब बर्तन धो रही हूँ तो मैं पूरा वो फिनिश करती हूँ, आई गेट दैट सेटिस्फैक्शन। तो हाँ, इससे भी डोपामाइन हिट हो रहा था। आई मेक श्योर कि भाई काम वाले आते ही चले जाते, बोली जब शाम के, आई मेक श्योर कि मैं जाके कर लूँ। यू नो, आई मेक श्योर आई एम पुटिंग माय ओन क्लोथ्स इन द मशीन। आई मेक श्योर कि छोटे काम मैं खुद कर रही हूँ, सो दैट वो डोपामाइन हिट मेरे को आ रहा, तो मेरे को यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, यू नो। एंड बच्चे के लिए भी आई डू द सेम, कि भाई उन्हें खुद से कुछ बना रही, तो खुद से एक रोटी डाल ली है उन्होंने, या खुद से यू नो अपना हेयर स्टाइल कर रही है, या अचीवमेंट है। खुद से अपने जूस शूज कल के लिए निकाल के सेट कर लिए, अपने क्लोथ, अपने वट एवर, यू नो, आई गिव हर द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग हर ओन थिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर हर ओन सेल्फ। तो उनको वो डोपामाइन हिट कैसा भी मिल रहा, so she will not seek it in a cell phone, no, she will seek it with these things. Right. So that is how I handle screen time. Can you give us like one thing which any mother seeing this can do at night today for her child, जो एक मदर कर सके, which will bring her child closer to दीन? कोई Yeah. एक चीज बताइए जो एक मदर कर सकती है। So what I do with my daughter personally is that उन्हों रात में कभी क्या है, थोड़ा she is scared of the dark, तो उनको एक नाइट लैम्प होना जरूरी है सोने के वक्त। इवन मी एक्चुअली फॉर दैट मैटर, तो हम लोग एक नाइट लैम्प रख के सोते हैं। तो उन्हों यू नो थोड़ा बाद में ऐसा हुआ कि वो नाइट लैम्प से भी शी वाज लाइक नहीं मम्मा मैं सोऊंगी तो फिर यू नो, एक तो रहता कि भाई सोए बात क्या, दे डोंट नो, तो वो डर रहता बेड टाइम से। तो शी वाज फाइटिंग दैट बेड टाइम, यू नो। तो भाई ब्रश नहीं कर रहे, कपड़े नहीं पहन रहे, जिद कर रहे, नहीं सोना है नहीं सोना है। तो मैं सोची क्यों हो रहा है, यू नो, व्हाई शी स्ट्रगलिंग सो मच। तो व्हाट आई डू इज, मैं तो एक नाइट रूटीन चार्ट बनाई उसके लिए विजुअली, वेयर शी कैन सी। तो इसमें ब्रश लिखा हुआ है, वॉशरूम लिखा हुआ है, उतरे हुए है लिटरली, टूथब्रश उतरा हुआ है, वो उतरा हुआ है, नाइट सूट उतरा हुआ है। तो शी नोज के भाई ये रूटीन एक्सपेक्ट करना है। एंड इस्लामिक वाइज मैं ये चीज करती हूँ कि मैं उनको बोलती हूँ कि अब मम्मा आपके ऊपर आयतुल कुर्सी फूकने वाले हैं, और आपको मालूम आपके ऊपर एक एंजल आने वाला है, और आप मॉर्निंग तक उन्हें आपके साथ ही रहने वाले हैं, यू नो, टिल फजर वो एंजल आपके साथ रहेंगे। बिकॉज मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, उनको मालूम हो जाता दैट ये बच्ची के साथ मेरे को रहना है, एंड उन्होंने आके मॉर्निंग तक रहते हैं आपके साथ। तो आप सो जाइए आराम से, दैट एंजल विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। तो मैं वो वन चीज दैट स्केट, उनको सोना ही नहीं है, मैं उन पे वो पढ़ के फूकती हूँ। फूकते उन्हें बोलते मम्मा आ गए एंजल हाँ बेटा आ गए। अब उन्हें रहते ना मॉर्निंग तक, हाँ रहते, आप सो बेटे आराम से सो जाओ। सो आई डू दैट। सो आई सजेस्ट यू नो टू द अदर मदर्स, ट्राई दिस, एंड आप ट्राई करके देखिए कि आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं दैट जब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ आपके ऊपर एक एंजल आएंगे, एंड दैट एंजल विल टेक केयर ऑफ यू, सुबह तक आपके साथ रहेंगे, आप सेफ है, आप आराम से सोइए। तो ये आप ट्राई करके देखिए अपने बच्चे के साथ, एंड इफ उसको वो चीज समझ में आ रही है, एंड इफ ही इज कन्विंस्ड कि वो होने वाला है, देन उनको आयतुल कुर्सी सीखना भी बोलेंगे। उन्हें खुद बोलेंगे मम्मा मेरे को तो भी सिखाइए, एंड आप जब पढ़ेंगे वो नोटिस करके एक दो लाइन सीख लेंगे वहां से, यू नो, नॉट द एंटायर थिंग ऑफ कोर्स, बहुत लंबी है, बट एक दो लाइन सीख लेते हैं, यू नो। सो ट्राई दिस एंड सी इफ इट वर्क्स, आई एम श्योर इट विल वर्क फॉर यू। Inshallah. You named it like Barka Tales. Okay. So did Barka actually came in when you were at, you know, zero in finances? And I'm not saying that Barka is only in money. So how much Barka did you feel in your life after starting Barka Tales? सो मेरे लिए आई थिंक आई वाज ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बरका। पहले मैं ये समझती थी कि अपन बोलते रिस्क में बरकत, रिस्क में बरकत, तो मैं समझती थी कि अगर आपकी रिस्क मल्टीप्लाई हो रही दैट्स बरका। बट अगेन आई सेड आई एम बुक, बोली मैं आपको, तो मेरे को हर टॉपिक पे खोदना रहता, कि मालूम करना रहता कि क्या है, यू नो, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। सो आई केम अक्रॉस दिस बुक कॉल्ड द प्रोडक्टिव मुस्लिम एंड द बरका जर्नल Okay. एंड द बरका इफेक्ट। ऑल दीज थ्री आर बाय द सेम कंपनी, मोहम्मद फारिस बोल के उसके ऑथर है, एंड ही इज रिटन अ spectacular book on the Barka effect, and that explains what Barka really is, you know. So आपको ब्लेसिंग रहेंगे, आपका रिस्क रहेगा, आपकी औलाद आपका रिस्क हो सकता है, या आपकी थोड़ों को माली रिस्क भी रहता, एंड यू नो थोड़ों को आई थिंक यू नो सम आर ब्लेस्ड विद गुड हस्बैंड, सम आर ब्लेस्ड विद गुड वाइफ्स, आप सम विद गुड पेरेंट्स, यू नो, ये भी है। बट उस वो आपकी रिस्क में जो ब्लेसिंग है, दैट इज द बरका बिहाइंड इट। आपका हस्बैंड होना, आपके साथ बेहतरीन रहना, दैट इज द बरका। आपके बच्चे रहना एंड दे बिकमिंग जैसे आपके सवाब जारिया बन रहे, दैट इज द बरका। एंड आपके यू नो इनकम है आपके पास एंड यू आर अर्निंग, बट आप उससे किसी की मदद भी कर सक रहे, यू आप जरिया बन रहे, दैट इज द बरका। सो आई अंडरस्टूड व्हाट बरका रियली इज। तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, यू नो, एंड मेरे को भी ये था दैट यू नो व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग किड्स समथिंग, एंड मैं एज आई टोल्ड यू आई वाज वरीड अबाउट व्हाट आई एम लीविंग बिहाइंड। मेरे अचीवमेंट्स की लिस्ट से ज्यादा मेरे को ये था कि मैं उसके लिए क्या छोड़ के जा रही हूँ। सो वहां पर मेरे को था कि वॉट एवर आई लीव, जो भी मैं उसके लिए छोड़ूंगी, या जो भी दूसरे बच्चों के लिए भी रहेगा, या अपने यू नो उम्मा के लिए रहेगा, उसमें बरकत भी रहना है, दैट वो बच्चा वो चीज सीख रहा एंड ही इज यूजिंग इट ऑल्सो,
you know, so that was the reason I included the word barka in it. And tales, as I told you, मैं story book से start करी थी. So you know, मेरा intention वो time पे था कि भाई I will design materials and stories for children. So ये Islamic club का तो जब idea भी नहीं था, so it started with Barka Tales. I registered that as a company, and वहाँ से खैर अल्लाह ताला उसको ऐसा you know step by step grow भी कर रहे माशाल्लाह in a way. So वो name टिक गया समझिए अब. माशाल्लाह. यू नो तवक्कल अल्लाह पे बहुत ज़रूरी चीज़ है और तवक्कल बहुत अपने आप को एक ग्राउंडेड भी रखता. बट हाउ टफ इट इज़ फॉर योर बैंक अकाउंट and what was your journey, how were you you know had that faith in Allah Taala, आपका तवक्कल इतना strong जब आपके बैंक बैलेंस कम होते जा रहा, उस टाइम पे कौन सी दुआ थी जो आपके साथ थी? what did you do to keep your faith in Allah Taala? मेरे पास अब देखिए इट वाज अ बिग चेंज क्योंकि मैं आई थिंक आई बीन वर्किंग सिंस मैं एमबीए खत्म करी. So this was in 2011. मेरा पहला Okay. job was in 2011 and alhamdulillah I think after I worked in a school for a year मैं coordinator के जैसा काम की. Then I got into sales. So मेरी पहली starting salary at that time जो मेरे को मिली थी was at 50,000 per Okay. month. तो you know because I was qualified and because I don't know उनको क्या दिखा but वो you know they started at that माशाल्लाह. salary. So मेरे को I've always been used to you know a certain amount. You know मेरे को Yeah. ऐसा था कि भाई एक luxury है एक मेरे आदत पास. हो I जाती can है. spend. You know तो I think unfortunately खैर शैतान भी है मेरे. I think मेरे खारिन बहुत मेरे ऊपर बहुत हावी थे. So I was into brands and I was into spending and you know I think every year एक international holiday कर रही हूँ, मम्मी को लेके जा रही हूँ and people were like अरे भाई आप लोग ladies मस्त you know घूम रहे enjoy कर रहे and I think it's not like showing off but वो कैसा भी होता ही था कि people get to know and अरे भाई you know branded पहन रहे, branded bags, branded shoes. I believe नहीं करेंगे मेरे bedroom में एक पूरा you know I had a wardrobe for bags and I had a wardrobe for shoes. And अब वो बरका टेज में है वो रूम तो अब वो बुक शेल्फ और टॉय शेल्फ बन गया. So you know so that is the U-turn it took you know मतलब वो भी था मेरे पास मतलब I was obsessed you know एक परफ्यूम रहना तो ऐसे ही रहना you know कपड़े रहना तो ऐसे रहना and अल्हम्दुलिल्लाह I think I carried it also तो वो it became a part of who I was. So I think जब ये पहले तो जब बच्ची होती है आप ग्राउंडेड हो जाते हैं बिकॉज आपको इतने खर्चे आ जाते हैं यू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ के भाई वो बैग नहीं भी लिया तो चलता वो यू नो उसके लिए कपड़े ले लेंगे नो उसके लिए वो कर लेंगे. सो दैट इज वेयर इट स्टार्टेड फर्स्ट कि भाई मैं अपने शौक कम करके बच्ची पे थोड़ा यू नो उस पे फोकस शिफ्ट हो गया अटेंशन वहां चले गया मेरा. देन सेकेंडली ये था कि यू नो व्हेन आई स्टार्टेड यू नो डूइंग द रिसर्च फॉर बर्गर टेल थोड़ा डेप्थ में यू नो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आई अंडरस्टूड दैट यू नो ये सब चीज़ें इज नॉट गोना हेल्प मी एंड मेरा फोकस ये हो गया कि भाई अब मेरे को आखिरत में क्या हेल्प होने वाला है यू नो व्हाट इज गोइंग टू हेल्प मी देयर. सो ये चीज़ों को कब करेंगे यू नो ऑटोमेटिकली वो पुल हो गया यू नो यू pulled from materialism to what is meaningful वो ऑटोमेटिक हुआ. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे आई थिंक ऑल माई हेल्पर्स एट सबा आपा भी बोले वी हैव जनरेशनल हेल्पर्स तो उनको चले गए मेरे बैग उनको चले गए मेरे शूज एंड दे वर सो हैप्पी एंड दैट वो जो मैं देखी कि भाई उन्होंने बिकॉज सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई लेफ्ट माय जॉब एंड माली मदद में कर भी नहीं सकती थी तो मैं क्या तरीके से करूँ तो मैं बोली चलो यू नो लेट्स मेक देम हैप्पी तो वो उनको वो तरीके से करेंगे माशाल्लाह. तो वैसा करेंगे तो यू नो एक था दैट सी ब्लाइंड फेथ तो मेरे को ये था कि मेरे को मालूम था दैट अल्लाह ताला जो मेरे को इतने चीज़ों से सलाहियत दे रहे हैं इतने यू नो चीज़ें सिखा रहे सो दिस इज फॉर समथिंग मेरे को एक शेप कर रहे हैं उन्होंने एक तरीके से आई थिंक पर्सनल लाइफ में इवेंट्स भी ऐसे हुए विच हैज शेप्ड मी इनटू अ सर्टेन पर्सन आई एम टुडे. आई थिंक जो लोगों को 10 साल पहले रूहीना मालूम थे होंगे और मैं आज जो हूँ इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट यू नो तो एक शेप कर चुके हैं मेरे को इन अ वे दैट यू नो मेरे को आज चीज़ों की अहमियत कम हो गई एंड यू नो ये अहमियत ज़्यादा हो गई कि मैं क्या चीज़ छोड़ के जाऊंगी जो मेरे लिए सवाब जारिया बनेगी जो मेरे को एक्चुअली वहाँ पे काम आएगी. वो बैग और वो शूज नहीं काम आने वाले हैं. नोबडी इज गोइंग टू गेट इम्प्रेस्ड ओवर देयर यू नो वहाँ पे कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है बरज़ख में. तो ये चीज़ कौन सी चीज़ें मेरे को हेल्प करने वाले हैं वहाँ पे यू नो वो मैं जमा करते जाऊंगी. एंड अगेन सेल्फिश रीजंस भी है बर्गर टेल्स के पीछे दैट यू नो this is something I want to do which I can leave behind for her which will work As for a me. legacy. एक लेगेसी के जैसा चलेगा कि मेरे बाद भी ये चीज़ मेरे को काम आएंगी. एंड बिकॉज आप देखिए सी हमारे मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं they are from I told you they are have deep roots in Hyderabad so they have left legacies for us. आज भी हम उसका फायदा उठा रहे हैं यू नो उनकी नीयत इतनी थी वो टाइम पे कि भाई उनको तो पता भी नहीं था कि ग्रैंड चिल्ड्रन के ग्रैंड चिल्ड्रन के ग्रैंड चिल्ड्रन भी वो चीज़ से फायदा उठाएंगे. सो वो हमारे लिए वो लेगेसी देके गए. Then my own mother has left a legacy of resilience for me and you know she has left a legacy of I think strength for me. तो उन्होंने मेरे लिए वो में इनकलकेट कर चुके हैं वो चीज़ जो मैं आगे जिंदगी तमाम यूज़ करूँगी.
सो मेरे को था कि मैं क्या छोड़ूंगी मेरी औलाद के लिए, बिकॉज आई कांट लीव पैलेसेस, राइट, प्रॉपर्टीज, यू नो दीज थिंग्स फॉर हर, तो व्हाट एम आई गोइंग टू लीव फॉर हर, जो उसके लिए लेगेसी बनेंगी आगे, यू नो विच विल मेक हर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, विच विल बी काउंटेड एज यू नो समथिंग आई लेफ्ट बिहाइंड, जो जिस चीज से मेरे बाद भी फायदा होने वाला है. सो दैट लेड मी, वो यू नो मटेरियलिज्म से एंड एक फिक्स सैलरी अमाउंट से, ये चीज़ों से एक ध्यान ही हट गया, यू नो ये चीज़ों पे डिपेंडेंस खत्म हो गई. एंड ये आ गया कि ठीक है चलो, अगर मैं कुछ लाइक ज्वेलरी खरीद भी नहीं सक रही हूँ या कोई चीज़ खरीद भी नहीं सक रही हूँ, इट्स फाइन. बट अगर कोई बच्चा मेरे से एक तस्बीह सीख लिया, आप सोचिए वो कितनी, मतलब मेरे लिए क्या सवाब जारिया बनेगा. सो मेरे को वहाँ मेरा फोकस यू नो शिफ्ट हो शिफ्ट हो गया. गया एंड कंप्लीटली. आज आप देखिए, यू नो यू सी मी कुछ एक प्लेन उसमें देख लेंगे आप, को खत्म हो गया वो चीज़, यू नो मटेरियलिस्टिक चीज़ों मटेरियलिस्टिक से थिंग्स इंटरेस्ट. ऑटोमेटिक खत्म होते हैं. आई थिंक आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला वो चीज़ से ऑटोमेटिक खत्म कर देते, बिकॉज ही पुल्स यू टुवर्ड्स समथिंग दैट्स मोर मीनिंगफुल. आपको ना ऐसा मीनिंगफुल चीज़ बता देते कि आपको उसकी लालच होना शुरू हो जाती है कि यू नो सही. ओके चलो, यू नो ये करिए, यू नो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प मी आल्सो. हम्म. सो दैट इज वेयर द, कोई एक दुआ जो आपके साथ थी. या आई थिंक मेरे व्हाट लिए व्हाट ये डिड है, यू यूज आई टू आई रिपीट लाइक, या. आई थिंक आई कैन से आई लाइक, कौन सी दुआ, जो आपकी जर्नी I'm में in साथ. need of whatever good you can give me. You know, that is the dua which always help me. कि आप मिन खैरन फ़कीर, आप जो दिए, you know, आप जो भी दे दिए, you know, मेरे लिए वो काफ़ी है. You know, that is going to help me. So that dua really helped me. And वो तो मैं हमेशा बोलते ही रहती हूँ. और एक भी क्या, you know, keep me firm upon your religion. Because जब अपने रसूल वो दुआ पढ़ रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कितनी ज़रूरी होंगी वो. You know कि आजकल इतने, you know, कितने फितने भी बोल सकते हैं आप, इतने चीज़ें हैं दैट अल्लाह करे कि डाइवर्शंस मैं है. डाइवर्ट ना हूँ कभी ये चीज़ से, एंड कभी कोई ऐसी चीज़ आमीन. ना आए मेरे लाइफ में विच में शाइनिंग ब्राइटर बोलते, तो ऐसा कभी हो ना. एंड आई कीप फर्म अपॉन द डिसीजन दैट आई हैव टेकन, बिकॉज आजकल भी क्या हो गया कि यू नो बिकॉज आई एम ओपनिंग अ वेंचर ऑफ माई ओन, ऐसा हो गया कि यू हैव टू बी सोशल एंड यू नो यू हैव टू गो इन इवेंट्स दैट यू नो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ फितना हो, एंड यू हैव टू लाइक पीपल्स कंटेंट जिसमें म्यूजिक हो. यू हैव टू डू दीज थिंग्स इफ यू वांट टू ग्रो. And I believe नहीं करेंगे initially when I started, and again this is an advice for all you know Muslim women who are starting new businesses कि you do get involved and आप सोचते कि हाँ मेरे को करना पड़ेगा शायद. If I do not put a trending music reel, शायद वो trend ना हो. If I do not like people's post with music and with all these things, they are not going to like me Right. back. And you know, if I don't collaborate with this influencer, मैं नहीं grow इंक्लूसिव होंगी. If रहने I के don't लिए go to अपने this आप को gathering, मैं नहीं, मेरे को लोग boycott कर देंगे. पार्ट Anything. ऑफ द ग्रुप You बिलोंग have to करने के belong लिए. somewhere. ऐसी Right. feeling आती है, you know. I tried that and I've left it. Because you know एक तो चीज़ है कि ये the thing I've stepped into ऐसी चीज़ है that वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ मैं. I'm not doing it for profit. I'm not doing it for कि भाई आप फीस भी मेरी देखेंगे it will be minimal. कि भाई I have to just run the infrastructure. That's the only thing. Help रहती है, उनको देना रहता है, you know. It's basic. तो ये नहीं है that प्रॉफिट प्रॉफिट के ओरिएंटेड लिए नहीं है. करेंगे या कोई चीज़ के लिए. मेरे को मालूम है दैट मेरे को ये करना है, मेरे को अल्लाह ताला के लिए करना है, और मेरे को नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना है, वो उम्मा के लिए करना है, वो बच्चों के लिए करना है जो इसके बाद आएंगे, जो फितने आई डोंट नो व्हाट फितने दे आर गोइंग टू सही. फेस. तो उनको टूल्स दे देंगे जिससे वो फितने फेस कर ले, यू नो. दैट इज द मोटिव बिहाइंड इट. सो ही अल्लाह ताला ही जरिया बनाने वाले हैं ये चीज़ का. लेट मी नॉट टर्न टू एनीबॉडी, लेट मी नॉट you know go out in events that openly, let me not you know do all these things that are जो मेरे को दिल भी नहीं बोल रहा करना. And let's see how it grows organically, you know. I've left it and वो organically alhamdulillah हो रहा भी, you know. People are liking the work and we are connecting with this. So as I told you, आप अल्लाह पे डिपेंड करके देखिए, बिल्कुल बिल्कुल. छोड़ के देखिए उन पे भी, you know. आप हर चीज ट्राई तो करके देखिए. क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बेसिकली हर मुस्लिम मदर का फियर है जो उससे गो थ्रू हो रहे हैं और एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट इज वेयर यू कम, आई फील. I hope you know इंशाल्लाह. people can you know इंशाल्लाह. connect with this. इंशाल्लाह So ताला. let's see. The reason behind you starting all of this is your daughter, as you said. So, but एक ऐसी चीज जो आपकी बेटी आपको सिखाए अल्लाह के बारे में जो शायद कोई स्कॉलर से आप नहीं सीख सकते थे. I think everything that I've learned today is because of her. And you know, ये भी रिलायंस से मेरे को ये फियर था दैट यू नो टुडे आई एम विथ हर, आई एम नॉट गोइंग टू बी विथ हर, हमेशा मैं साथ रहूंगी नहीं मेरी बच्ची के. एंड आई थिंक आज हर अम्मा को ये फियर है, यू नो. एवरी मदर हैज दिस फियर कि भाई हम कब तक बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे and कब तक उसके साथ रहेंगे. एक पॉइंट के बाद ऐसा रहेगा कि वो बच्चे के साथ हम रहेंगे भी नहीं, यू नो. तो दैट फियर, वो जो डर था मेरा, दैट लेड मी टू अंडरस्टैंड. वहां से ये समझ में आना शुरू हुआ कि भाई अल्लाह को 70 माह की मोहब्बत है, ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर हर. तो उसको उनसे कनेक्ट करा देंगे तो मेरी अहमियत वहाँ पे कम हो जाती है. उसको मालूम है कि मेरे को रिलायंस इन पे ज्यादा है रादर देन माय मदर. उन्होंने मेरे को खाना दे रहे, पानी दे रहे, सही बात है, बट बाकी की सब चीज अल्लाह ताला से आ रही. तो वो एक रिलायंस अम्मा पे कम करके अल्लाह पे ज्यादा हो जाता है, यू नो. दैट
वहां से मेरे को खुद भी समझ में आई वो चीज, एंड मेरा खुद रिलायंस उन पे ज्यादा होना शुरू हुआ। तो मैं खुद भी ये चीज समझना शुरू करी कि हाँ, जब उसका भी तो रिलायंस उन पे है तो मेरा भी तो उन पे ही है, बिल्कुल मेरा भी रिलायंस उन पे है कंप्लीटली, एंड ही लव्स मी मोर देन एनीबॉडी कैन एवर इवन इमेजिन। उन सबसे मोहब्बत से ज्यादा मेरे को अल्लाह की मोहब्बत काम आने वाली है। एंड वो रिलाई करना, वो तवक्कुल आना, ये सब चीजें स्टार्ट ही इसलिए हुए थे क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट बच्ची की तरफ से सीखी थी। तो ये चीज़ें भी उससे स्टार्ट हुए, एंड देन हिजाब जो मैं स्टार्ट करी, मैं उसको उम्रे पे लेके गई थी, उन्होंने 2 साल के थे। दैट्स व्हेन फुल फ्लेज्ड मैं ये स्टार्ट करी, बिकॉज़ आई टोल्ड यू मैं 2015 में स्टार्ट करी थी, एचआरबीपी के रोल में थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, एंड आई फेस सो मच एट वर्क कि मेरे को निकाल देना पड़ा। आई लिटरली थ्रू इट, मैं बोली कि भाई क्या है, आई एम बीइंग जज्ड सो मच विद दिस, एंड एक आइडेंटिटी, एक तो मैं आइडेंटिफाई कर नहीं सक रही हूँ थी बिकॉज़ आई हैव बीन रेज्ड इन अ सेक्युलर वे। राइट तो द बहुत हिंड्रेंसेस थे वो टाइम पे। And this time when I started it, I knew I started with the right intentions. मेरे को मालूम था कि भाई मैं बच्ची के लिए I become a role model for her. I normalize hijab for her. I normalize haya for her. तो ये चीज़ों से जब मैं intention से start करी तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आज भी it's carrying on. I still don't say कि भाई पूरा 100% आ गया practice कर रही हूँ, but एक It's a level journey. it started, that We are on a that journey. awareness has started, that importance has started, and the love has started. This time it's not forced, this time मैं खुद कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ, and even if outside के चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आई नो कि मेरा इंटेंशन क्या है, सो दैट्स कीपिंग मी स्ट्रांग थ्रूआउट, एंड हो सकता है मे बी 5 years डाउन द लाइन आप मेरे को निकाब में दिख रहे, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हाउ इट विल अनफोल्ड, बट ये है कि भाई ये अहमियत एंड इम्पोर्टेंस एंड ये चीज़ें मेरे को बच्चे के बाद ही आना शुरू हुए कि अपन डेप्थ में जाके सीखना, डेप्थ में जाके अपने रिलीजन को समझना कि भाई अपन क्यों नमाज पढ़ रहे एंड क्या है इसके पीछे। वी नो के सूर्य नाजिल हुए थे, ये हुए थे, वी नो एवरीथिंग, बट एक्चुअली कैरेक्टर है क्या, हाउ आर रसूल्स कैरीड देमसेल्व्स, हाउ डिड द सहाबी कैरीड देमसेल्व्स। तो ये सब चीज़ें डेप्थ में आई डिड ओनली आफ्टर आई हैड माय डॉटर। What would you say to a woman listening this? कि जैसे एक बच्ची देख रहे हैं और उन्होंने completely दूर चले गए इस्लाम से, and now she is thinking कि मैं तो इतनी दूर आ गई, can I go back? What would you guide कि एक first step उन्हें क्या लेना कि वापस अल्लाह की तरफ आना? सी आई फील कि पहले तो एक चीज़ है कि सोसाइटी आई थिंक आपको इतना जज करती एंड आपके फॉल्ट्स ऐसा बेहतरीन तरीके से एलाबोरेट करते कि आपको मालूम कि आप कौन से ईयर में क्या गुनाह करे थे, वो ऐसा हाईलाइटेड रहता कि एंड आई विल नेवर मेक इट, हम भूलने नहीं देते। आपको आई थिंक 10 साल पहले को गुनाह करे होंगे, आपको आज याद दिला देंगे कि भैया आपको याद नहीं है, जब क्या करे थे आपको नहीं याद है, आप आज हिजाब कर रहे, ऐसी चीजें हैं कि आपको भूलने ही नहीं देंगे एंड आपको बार बार इंस्टिल करते जाएंगे, एंड आई थिंक ये शैतान की तरफ से भी आता होगा कि आप समझना कि भाई अब मैं काबिल माफी नहीं हूँ, लाइक अब मैं इतने सब आई बीन थ्रू सो मच और मैं इतना देख चुकी हूँ, मैं इतना कर चुकी हूँ कि क्या अल्लाह मेरे को माफ करेंगे इसके बाद, क्या ये होएगा। तो आपको एक ये दिला देते दिमाग में, आपके दिल में ये डाल देते कि भाई ये होने वाला ही नहीं है, आप अल्लाह आपको माफ कर ही नहीं सकते, ये चीज हो ही नहीं सकती, एंड आप इससे ऊपर कहाँ से उठेंगे, आप क्या करेंगे, आप ऐसा वो जहन में आ जाता अपने सोसाइटी से, एंड आई थिंक अपने ओन फैमिलीज ऑल्सो फॉर दैट मैटर, आपके कजिन से या किसी से भी, कि आप समझते कि अब भाई अब नाउ हम बियॉन्ड होप है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम क्या करेंगे, अब एक नमाज भी पढ़ लूंगी तो मैं क्या करूंगी, क्या होगा। सो आई माई एडवाइस इज ऐसे टाइमों पे जब आपको जिक्र है कि अब तो मेरे नमाज का कोई फायदा ही नहीं है, या अब तो मैं कुरान पढ़ूं तो कोई फायदा ही नहीं है, वो टाइम पढ़ो आप, दैट इज द टाइम यू टेक इट अप। वो टाइम पे आप करिए वो चीज, जब आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई आज अब मैं अब ईद है, मैं नमाज भी पढ़ूंगी, मैं रोजे तो रखी ही नहीं, रमजान तमाम, तो मैं क्या करूँ नमाज पढ़ के भी, आप जब पढ़ो नमाज, डू इट एट दैट टाइम, बिकॉज ऐसे फैक्टर्स शैतान भी जो प्ले करते हैं, आई थिंक वी कैन से कि वही मेक, जब आपको दिख रहा है कि दिस इज द लास्ट प्लेस आई मीन, इससे बढ़ के मैं कुछ गुनाह कर ही नहीं सकती हूँ, इससे बढ़ के कुछ होप है ही नहीं, वो टाइम पे आप पढ़िए, क्योंकि अब वैसे मोमेंट में अगर आप अल्लाह के तवक्कुल पे यकीन रख सकते हैं, एंड वो टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, दैट इज गोइंग टू पुल यू बैक टू हिम, बिकॉज आई थिंक ये तो सबको मालूम है कि भाई आप एक कदम बढ़ाइए, अल्लाह आपको 3 कदम आपके तरफ बढ़ाएंगे। सो आप वो कदम बढ़ाओ, डोंट लूज होप थिंकिंग के मेरे को कोई माफी नहीं है, या मेरे को कोई देयर इज नो वे आई कैन गेट आउट ऑफ दिस, या मैं ये चीज में से निकल ही नहीं सकूंगी, या मैं माहौल में से निकल ही नहीं सकूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए अल्लाह ऐसे जरिए बनाएंगे दैट आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं कहाँ से कहाँ निकल गई, बिकॉज आई थिंक इवन इन माई फैमिली ऐसा है कि हिजाब एंड बुरखा लुक डाउन अपॉन, इट्स लुक लाइक भाई आप एक्सट्रीम हैं, या एक स्टेटस सिंबल, बिकॉज आई थिंक एक लोअर स्टेटस में आते हैं वैसा, दे कैटेगराइज दीज थिंग्स, and these things were looked down upon because we also come from a feudal mentality.
तो ऐसा होता कि भाई आप इवन देन आप लड़िए वो चीज से, आप करिए। अगर आपको अल्लाह ताला वो सलाहियत दे चुके हैं दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग आई नीड टू प्रोटेक्ट, दिस इज समथिंग आई शुडंट बी एक्सपोजिंग, आप करिए। अगर उससे पहले आप आई थिंक अपने आप को मॉडर्न इमेज जो बोलते हैं वैसे भी थे तो भी आप करिए। वाई डू यू थिंक कि भाई मेरे को ये चीज की माफी नहीं है, या वाई डू यू थिंक कि टुडे इफ आई कवर, हाँ वो तो जैसे सना खान है शी जी, स्टार्टेड हिजाब, तो ऐसा तो ये बोल सकते हैं भाई बॉलीवुड में थे हम सब देख लिए, अब उनका फायदा क्या है करने सही का। है। आप करिए ना, आप करिए। अगर आपके दिल में अल्लाह की अल्लाह वो मर्जी सलाहियत है। डाल चुके हैं, इवन टुडे यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डे वन। ऐसा कहीं नहीं है कि भाई ये चीज की माफी नहीं है, या ऐसा कहीं नहीं है कि आपको आज गाइडेंस नहीं मिल सकता। आपको गाइडेंस कोई भी एज में आ सकता है, बिकॉज रसूल आप देखिए 40 में उनको पहला रिवलेशन आया, ही वाज 40, तो ही अपने पास तो बोलते कि भाई 40 बोल तो खत्म, मिडिल एज हो के चुके हैं। सही है। तो उनको आधी अगर लाइफ। वो एज में रेवलेशन आया तो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्निंग 40 पहले तो। राइट। It's a beautiful age. That is the age where you start reflecting on your entire life that has passed by, and you start reflecting on what is coming ahead. Because I'm 37 now, and I think some of my friends who have turned 40 freaked out. अरे भाई हम 40 हो रहे 40 हो रहे, तो बड़ी कितनी खूबसूरत एज है। मतलब आप सोचो ये एज में रसूल को हिदायत आई नहीं थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली वही आई थी। तो आप सोचिए क्या अहमियत होंगी ये नंबर की कि अल्लाह वो एज पिक करे उनके लिए, बिकॉज दैट इज द एज जब आप पूरा अपनी आधी लाइफ जी चुके हैं ना, ऐसा मूवी के जैसा प्ले करके आप देख रहे, यूर कंटेम्पलेटिंग कहाँ सही थे कहाँ गलत थे। अब अगर आज आप 40 पे हिजाब स्टार्ट करना चाह रहे हैं करिए। अगर आप 40 पे इस्लाम सीखना चाह रहे हैं, आपको ऑलरेडी आती है बट आप डेप्थ में तफसीर के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, आप पढ़िए। ये मत सोचिए कि भाई इसकी माफी नहीं है या इट्स टू लेट फॉर मी टू स्टार्ट, भाई मैं क्यों करूँ, मैं क्या कैसा करूँ, वो मत सोचिए आप, बिकॉज नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज स्टार्टिंग। अब आपको जिम्मेदारियां थोड़ा सेटल्ड है, नाउ यू नो कि भाई आप लाइफ में क्या करिए क्या रहेगा। आप माफी भी वो चीज की यही मांग लेके जाइए, आप वहां तक मत करिए कि भाई रोजक में गए बाद उसका हिसाब रहा, यही खत्म कर देंगे आप, कि भाई वॉट एवर आई डन, जो भी गुनाह है मैं करी, ब्यूटीफुल। इसकी माफी अगर मैं यही मांग ले रही हूँ तो वहाँ क्लीन स्लेट है आपके पास, स्टार्ट विद क्लीन स्लेट देयर। इंशाल्लाह। As you said, we are judged by wearing a scarf, and as you were judged in corporate, तो इस पे थोड़ी लाइट डालिए आप कि क्यों, नॉट व्हाई डू एग्जैक्ट यू थिंक कि नहीं जनरली भी होता yeah. कि जो भी हिजाब कर रहे हैं तो थोड़ा बैकवर्ड है या थोड़ा वो See, है। that is there. That is one aspect of it, and another aspect of it is that your opportunities get limited. If you're up for a क्यों promotion or ऐसा? if you're up for क्यों these ऐसा? things, because see, so ये है पहली चीज तो that we have been made to believe that Islamic women are oppressed, right? तो वो narrative जो I think social media पे news में अफगानी women this that ऐसा portray कर चुके हैं that एक हिजाब में अगर औरत है तो it's against her wish firstly, she is oppressed secondly, she is not educated thirdly, and she is not capable enough. तो ये चीज़ें बैठ चुके हैं जहन में, and I think even आप अपनी जर्नी बताइए कॉर्पोरेट में, जैसा आपके लिए क्यों टफ था और क्यों आपको हिजाब निकालना पड़ा, because you were the same Ruhina before hijab and after hijab, and they knew you already, they knew your scope, how well you outperformed many. so that was a new job. So जब मैं Okay. हिजाब करी बाद I went for the interview with the hijab for the first Okay. time. So they didn't know, of course resume में तो they knew Right. the capabilities, they knew my strengths, they knew everything. But see, आप जब एक हिजाब पहन के सामने जा रहे तो you again automatically आपके preconceived notions come into play. कि आगे वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको मालूम है कि अरे भाई हिजाब में सो कुछ Islamic है। लिमिटेड होगा, या नहीं तो इस्लामिकली इंक्लाइंड, या नहीं तो हो सकता है कि somewhere down the line ये चीजें कॉर्पोरेट प्ले होते कल्चर हैं, में you फिट इन do, नहीं होंगे। yeah, you do start to categorize again, as I Okay. said. But alhamdulillah my top management was very good, and they understood my capability, वैसा तो मेरे को हुआ नहीं, but then again being you cannot do the same things that other women can do in that position. जैसा कि आप ऑफिस के पार्टीज होंगे आप जा नहीं सकेंगे, you won't want to also go Right. and engage people from the other sex, जैसा कि आप हाथ मिलाते हैं, there's so many things, I'm just giving you an example, but depth में बहुत चीज़ें हैं इसमें, Right. that you cannot do the same things that you used to do. And उससे क्या होता है, you start getting left out, and you start getting I think कुछ opportunities आएंगे तो पहले उनके पास आएंगे, then they will come to you. And I think आगे जाके भी जैसे HRBP थी उसके बाद अगर कुछ आना है, कुछ promotion होना है, तो it will first go to people who are Right. obviously not going to be stamped in a certain way. Right. So आपके opportunities limit हो जाते हैं, honestly speaking. And so I understood one thing from this job कि भाई आगे भी जाके ये था दिमाग में कि भाई when I have children and when that child ये चीज में बड़े होने वाला है तो उसके भी opportunities limited ही रहेंगे, right? Right. And I think अपने को तो खैर अपन जॉब में फेस कर रहे हैं, बट हो सकता है ये बच्चे I think स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे भी फेस करें,
हो सकता है उन्होंने भी जॉब लेवल में फेस करें. सो that's a reality we are living with these days, that you know our opportunities are limited, honestly speaking. And unless and until आपका खुद का business है, of course those women are not facing these issues, but women in positions are facing certain stigmas and a look here and there, yeah, you know, a word on the table, it Judged, has, they are judged. being judged. So this is a reality we have to live with. And accordingly आप ऐसे चीज पे काम करिए where you don't have to be dependent on an outer you know authority for these things, where I also understood कि भाई ये job छोड़ के doing something of my own, yeah, you know, is not going to have me in a position जब मैं answerable नहीं हूँ किसी को, so I can Right, do anything I have to, and right. आगे जाके scope भी limited नहीं रहता. इंशाल्लाह आजकल जैसा मदर्स भी ना वर्किंग वुमेन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा तरीके से कोशिश कर रहे हैं, एक मदर्स गिल्ट रहता, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड शी डू टू बैलेंस इट आउट? So I think मैं गुजरी वो चीज से, हाँ, because मेरी बच्ची 8-9 महीने की थी, मेरे को जॉब पे जाना पड़ा था, और तो फीट पे थे. सो मॉम गिल्ट इज रियल. ये तो है दैट यू नो आपका जहन ना वहाँ रहता ना यहाँ रहता, बिकॉज वहाँ रहे तो आपके दिमाग में ये रहता, घर आए बाद आपके दिमाग में ऑफिस का चलते रहता. सो ये तो है दैट यू नो वर्किंग वुमन हु स्ट्रगल्स है, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि भाई हाउ डू दे बैलेंस दिस. बट मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड द सपोर्ट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू नो माय मदर वाज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स माय बेबी. सो मेरे को इतना तो था कि भाई शी इज इन सेफ हैंड्स, सो आई कुड यू नो work with a free mind. But yeah, this is a very big challenge, and I think unless moms understand the intention behind what they are doing and the intention behind why they are doing it, journey थोड़ी आसान हो जाती, but difficult तो रहती. It's painful. I'm telling you, I used to cry in office and उसको वीडियो कॉल करके देखते रहती थी, अरे भाई you know what is she doing at home, and क्या चल रहा, you know I'm not there. That is it's a very very real feeling. But only thing is आप जब intention बना लेते हैं why you are doing it and for what purpose you are doing it, आपका थोड़ा मुश्किल कम हो जाने वाली है. Even then the mom guilt is not going to go, it's a real thing. But ये है कि it will become a bit easier when you hold Allah's hand. आपको थोड़ा एक ये हो जाता है कि भाई you know बच्ची safe है, you know you're leaving her in trustworthy position, you're doing it for a bigger purpose, so आपको एक रास्ता थोड़ा आसान होता है आपके लिए. इंशाल्लाह. मदर्स आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मतलब पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों को कैसा पढ़ाना, बच्चों को कैसा कौन से स्टेज में कैसे गाइडेंस बच्चों को देना. तो आप कोई, जैसा आप बुकवर्म हैं, तो आप प्लीज़ कोई एक बुक सजेस्ट करिए जो मदर्स आज पढ़ सकते हैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए, एक अपने आप को एनहांस करने के लिए एज़ अ मदर. I think a book that really helped me जब मैं Montessori से introduce नहीं थी, and just एक friend a fellow friend from NASA had just recommended this book, Absorbent Mind. ओके, सो ये बुक मैं पढ़ी, तो दैट्स व्हेन मेरे को मॉन्टेसरी से एक यू नो फिलोसफी समझ में आना शुरू हुई, एंड आई अंडरस्टूड कि बच्चे कैसा सीखते हैं. ओके, बिकॉज आई थिंक जब ये मदर ये समझ ले कि बच्चा सीखने कैसा वाला है एंड ग्रो कैसा होने वाला है, एंड किस तरीके से यू नो वो चीज़ों को समझते हैं, एंड क्या क्या सेंसेस यूज करके चीज़ें समझ में, एंड व्हाट स्टेज क्या चीज़ ज़रूरी है इंट्रोड्यूस करना, सो इट बिकम्स ईजी फॉर हर टू डू इट एट हर होम. राइट, के तो उसमें क्या है, दे आर phases of I think 0 to 3, 3 to 6 month wise कि ये Okay. मंथ में आपका बच्चा किस चीज से इंटरेस्टेड रहेगा, and at the end of the page there are activities you can try with your child at Okay. home. एब्जॉर्बेंट So माइंड. the absorbent mind, so yeah, I think will be helpful for new moms. I'll also give you a link to the book, so you can share that, and I think this will be very helpful for mothers कि उनको समझ में आना शुरू होता है कि क्या एज में बच्चे को क्या चीज एक्सपोजर की जरूरत है. Because again in Montessori you know there are critical stages in a child's life, and वो time पे that window of learning is open, राइट, and जैसे 3 to 6 पे you know they are not that open to movement, but language is very important. ओके, And 3 to 6 में language का है, but movement is very important. ओके, So 3 to 6 में do activities which make the child move, and 0 to 3 concentrate on things which will enrich their language. जैसा आप you know जैसा मेरे पास भी ये चीज़ थी कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई वाज वर्किंग एंड ऑल, मेरे को बेबी टॉक ये वो करने का टाइम नहीं मिलता था बच्ची से, राइट, राइट, तो मैं राइट, उसको नॉर्मल जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं उससे ऐसी बात करती हूँ, यू नो सिंस शी वाज अ बेबी मैं उससे ऐसी बात करती हूँ थी, तो शी पिक्ड अप लैंग्वेज वेरी क्विकली. एंड नो, एंड आज भी आप उनसे बात करके देखिए, आप बोलेंगे अम्मा यू नो क्या बुड्ढों के जैसा बात कर रही, बिकॉज शी डजंट टॉक लाइक अ किड, यू नो शी इज पिक्ड अप यू नो टॉकिंग लाइक एन एडल्ट. सो दीज थिंग्स की लैंग्वेज इतनी एनरिच हो चुकी है, उसको पूरे वर्ड्स आगे जो अपन यूजुअली यू नो एडल्ट्स यूज, एंड वो पापा पानी पी रहे, मम्मू खा रहे, आई डिडंट डू इट, मम्मू खाना खाओ बेटे, पानी पियो बेटे. सो शी स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दैट,
तो you enrich the child's language. आप उससे normally बात करिए जैसा आप किसी और से भी बात करते हैं. Don't treat her like a kid. ऐसा मत समझो कि मैं baby talk करूंगी तो उन्हें fascinate होंगे. आप normally बात करिए, अपनी voice modulate करिए. Talk like a animated way या थोड़ा silently बात कर रहे हैं, कभी ऊपर नीचे आपकी voice को modulate करिए. That will draw the attention of the child rather than using words which are babyish. And that helps 0 to 3-year-olds. And 3 to 6 में I think movement based, whatever you want to teach your child, आप उसको हिलते हुए करिए. Do it when the child is moving, or do it in a way that will make the child move. Okay. So, or will make him involved in that activity rather than showing it in a book or showing it in a way, because that is the stage of movement. Okay. जब उन लोगों के fine motor skills, gross motor skills, body balance, all these things are getting developed. So जितना exposure ये चीज से रहेगा उतना जल्दी आपका बच्चा वो चीज सीखेगा भी. So they are critical windows of learning, and this book gives an exposure to these things. So any mother, I think it will be helpful. Even अगर Montessori depth में नहीं पढ़े, this book will give them a bit of exposure. बच्चों का साइकोलॉजी समझने के लिए थोड़ा एक्सपोजर अच्छा मिलेगा ये बुक से इंशाल्लाह ताला. कोई एक वर्ड, अरबिक वर्ड, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई एक बच्चा सीखना विथ मीनिंग, जैसे अपने को अरबिक तो एज लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कोई एक वर्ड जो आपको बहुत पसंद है, दिल के करीब है, फेवरेट है, या फिर जिसका मीनिंग हर बच्चे को मालूम रहना जरूरी है? खैर मेरे लिए तो तवक्कुल है, बट दैट अगेन इज नॉट चाइल्ड फ्रेंडली. आई मीन उनके लिए वो चीज जरूरी नहीं होती. मैं मेरी बच्ची को शुक्र सिखाई, बिकॉज मैं उसको ग्रैटिट्यूड सिखाना चाह रही हूँ फ्रॉम दिस एज, कि छोटी भी नेमत रही तो बी थैंकफुल, बिकॉज अपने पास भी है इस्लाम में. आई थिंक जब और यू आर थैंकफुल द मोर आई विल गिव. आप जितना शुक्र अदा करेंगे आपको उतना मैं दूंगा. सो अगर वो बच्चे वो एज शुक्र का एग्जैक्ट मीनिंग बोलिए. शुक्र का एग्जैक्ट मीनिंग अगेन इज थैंकफुलनेस, कि भाई अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह जो बोलते हैं, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इज सो प्रोफाउंड. वो खाली थैंक यू नहीं है, थैंक यू के साथ यू आर प्रेजिंग अल्लाह एज वेल. thank Allah and praise be to Allah. That is the meaning of Alhamdulillah together. It's not just thank you. तो आप एक तो जब आप थैंक यू बोलते किसी को, आप खाली उनको हद तक उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं. बट जब आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं मनामत के लिए, आप बोल रहे हैं कि एक तो थैंक यू अल्लाह ताला, एंड Allah Ta'ala is the only one this could have come from. So that word itself is so profound कि आप शुक्र सिखाइए बच्चे को, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना सिखाइए at every phase. खाना खाए बोल दिए, पानी पिए बोल दिए, कुछ नया गिफ्ट मिल गया आप बोल दिए. परसों मैं आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी शेयर करी, बच्ची पानी पूरी क्रेव कर रही थी, मैं उसको स्विगी से मंगा के दी. सो विद इन 10 मिनट्स उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई थी. क्रेव कर रही हूँ, आ गई. तो मैंने को बोली कि बेटा देखो कितनी जल्दी आ गया, आप क्या बोलने वाले हैं? तो शी थी अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा. जो आया उसके मुंह से. मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी शेयर करी वो चीज के शी इज अंडरस्टैंडिंग दैट एक तो थैंक यू अल्लाह मियां फॉर दैट, और वो आपके जरिए ही आ सकती थी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, एंड मेरे लिए दिस वर्ड बहुत मायने रखती है. एंड आई फील इट्स एज अप्रोप्रिएट फॉर देम कि 3 to 6 में आप ये सिखाइए, because this is the first word they are exposed to, and they start loving alhamdulillah. So later on भी जब ये word बोलेंगे, ये words alhamdulillah सूरह फातिहा deep meaning, they go into the depth of it. So I feel that's the word that works for me. Thank you so much. Anything you would want to add? What I missed? What do you think I missed? And I think you covered everything beautifully. I think any mother watching this is going to be very helpful. I hope it becomes helpful for them. And that is what I think एक ही advice है, that focus on what you're leaving behind for your children, and आगे का रास्ता आपका set हो जाएगा. Focus on what your child is going to become, and if आप जैसा आपके बच्चे को देखना चाह रहे 10 साल के बाद, आप आज वो बनिए. आप आज जब वो बन जाएंगे, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देखते हुए पिकअप करते हुए थिंग्स 10 साल के बाद विल बी द सेम दैट यू वांट हिम टू बी. सो बिकम व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू बिकम. आप जैसा मुसलमान उसको बनाना चाह रहे हैं, आप वो आज बन जाइए, एंड आपका बच्चा विल फॉलो. ब्यूटीफुल थॉट देयर. Jazakallah khair. Thank you so much, Ruhina, for having us here. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. The honor is all mine here. Thank you so much. It was so lovely talking to you. Same here. And मेरे खुद के लिए भी इतने सारे ओपन हुए मेरे बैरियर्स माइंड में कि अपन कैसा इस्लाम को प्रैक्टिकल नहीं समझते, कि इस्लामिक है, हाँ बहुत, अरे बहुत रिलीजियस है, बहुत ये है, ऐसा बस करना है, चलो अपनी फैमिली से आया, अपने बड़े कर रहे हैं, अपन को करना है. लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी इस्लाम के बारे में आप बताएं कि क्यों इतनी ज़रूरी है, बच्चों को इतना अभी से इसमें इन्वॉल्व कराना क्यों ज़रूरी है, दैट इज़ आई थिंक द जिस्ट ऑफ this episode. Thank you so much. Thank you so much. Jazakallah. Jazakallah khair.